today one of the student who actually used to study the whole thing, but she used to not come in the classes. हमारे classes में नहीं आती थी वो. तो उसके काफी inputs होते थे शिल्पा के. तो शिल्पा used to study this अलग से वीडियो में because she used to work in the afternoon. So because she had fantastic examples, I told her चाहे थोड़ी देर के लिए मेरी क्लास में आके ना ये तुम अपने हिसाब से बोल देना, क्योंकि मैं तुम्हारे एग्जाम्पल्स बोलूंगी ना तो वो इफेक्ट नहीं रहेगा. ठीक है? On Lesha. So she's come today and we'll just discuss her cases first and then we'll go from there on our own, जैसे हम जो लक्षण द्वार कर रहे थे उत्तराध्यान में से. ठीक है? So Shilpa wanted to suggest one examples करके. Shilpa, please discuss. Okay, and we'll brainstorm and then we'll go to a second examples. ठीक है? Continue your example, Shilpa. Okay. Jai Jinendra Didi. Yeah. So Didi, first example, my dadi always used to say कि when someone leaves house या someone comes, उस time if there is any negative, just don't say. Let them have their food, water. उसके बाद में जो बोलना है बोलो. And it's so true. जैसे even when husband comes home, already उनकी इतने सारे business problems and वगैरह रहते हैं. Suddenly if you ask ये नहीं हुआ, तोरू नहीं लाए, कद्दू नहीं लाए, I think अगर लेशा खराब हो तो और ज्यादा भड़क जाती है. So because of what Dadi said, that time I didn't know that it is Lesha. Use a strategy first. Ask, how was your day? देखो कि कैसे भाव and everything. Give him some food, water, juice, जो भी देना है, and then start up. So yeah, the same goes with the morning also. जब हम सो के उठते हैं ना, तो जनरली क्या नाश्ता बनाए, क्या खाना बनाए, मुझे तो नहीं अच्छा लगा, मेड सर्वेंट आई है कि नहीं आई है. यू अंडरस्टैंड? हाँ, आज पूरे दिन में करना क्या है. अरे दीज आर द टेंशंस ऑफ द डे, राइट? सुबह उठ के how was your night? Did you have a good night's sleep? Understand? वो ओवरऑल उस बंदे की लेशा जितनी भी घटिया हो ना, वो उसका लगा यार ये बंदा मेरे बारे में केयर कर रहा है, मैं ठीक से सोया कि नहीं सोया, दैट इज बॉदर्ड, राइट? सो आदमी का वो केयर से ही आधी वो जो नेगेटिविटी है, जो गंदी लेशा है, वो ऑटोमेटिकली अच्छी बन जाती है. दैट्स सो ट्रू शिल्पा, आई टोटली एग्री. rather than concentrating on tensions and ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ and all those things, we can bother about तुझे क्या चाहिए बता, खाना पीना ले लो, like you said, खाना पीना ले लो, ध्यान रखो, ऑफिस से आया है तो अरे how was पहले कुछ खा लो, पी लो, रेस्ट कर लो, राइट? पंखा चला देते हैं हम, ये कर देते हैं, make them comfortable. It should be about them, right? When it is about them, that the Lisha will be good, right? But आते सार तुमको अपनी पड़ी है, अरे मेरा काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ. Are we clear? So Shilpa, that's so true, so true. Good example. Continue with that example again. Forward. So extending that same philosophy जो दादी माँ बोलते थे, even in the team, when we have a team meeting, not everyone are fortunate that they have a business class family. जो लोग job करते हैं, they really have to make two ends meet. They have a family struggle and everything. Starting with how was your weekend, and then even if you have to give a feedback, Friday का काम अच्छा नहीं था, strategizing कि अभी बोलना है या maybe it could just wait defer for 2-3 hours. So that works. Same logic for my daughters. They come from school at 3 o'clock. And pehle I used to have my, after COVID, since we are working from home, so I used to have my meetings also at 3 o'clock or something. Suddenly you are in the rush to prepare for the meeting and all. Bacha school se they are so happy. They want to share so many things with mama. At school mein ye hua. So super excited they are. Even if it is a small thing like आज हमने drawing किया, आज teacher ने मेरे हाथ में star बनाया. I'm in the rush of कि अभी CEO को presentation डालना है and तुमको ये सब बातें बतानी है. So at sometimes there was so much of irritation कि वो बच्चा भी क्या हो गया, मम्मी को क्यों बिना मतलब हाइपर हो रही है. And it used to be a very very bad conversation with the kid. बिना मतलब उसको डांट रही हूँ. So as a strategy, I've kept my calendar free between 3 to 3:30 so that when they come from school, you just attend to them. So that increases their positive ratio because anyways, after 3:30 till 7, they would be preoccupied with the tuitions and other classes. So if you could just free up that time, even I'm not stressed in passing my bad Lisha to them, and their positivity, their enthusiasm, it adds on to mine. And if there were any stress at work, that also decreases. Yeah. So इससे हमने क्या सोचा कि people need attention, okay? सामने वाला person needs attention. And attention मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे काम कर दूं या मैं ये काम है, वो काम है और टेंशन दो कि ये करो. Just उसकी वो सामने वाले को क्या चाहिए, the minutest detail, just taking just verbal things like
how was your day, I hope you had a great day, right? And you're taking good care. कि कोई बीमार है तो I hope you are feeling better now, right? I hope the doctors are attending to you. Is there anything I can do for you? Such small sentences where the सामने वाला person is the focus, right? And you have a genuine concern and care really makes the Lesha better, as you said, right? And puts the whole thing on a very better grounds for us to work. ठीक है शिल्पा? Is that what you are trying to say, right? Yeah. हाँ, और सबसे ज्यादा लेशा खराब होती है जब पेट खाली होता है, यानी भूख लगी होती है, से शिल्पा, राइट? दादी सेड ना कि पहले खाना पीना खिला दो, बाद में बट विल फिगर इट आउट, राइट? सो लेशा तभी भी खराब होती है व्हेन यू आर हंग्री आल्सो. सो ट्रू. सो शिल्पा, टोटली वेल टेकन एग्जांपल. नेक्स्ट. Yeah, so I used to sleep early and eat early also. And after marriage, there were a lot of late night parties and everything. So because वो खाली पेट रहता था, बहुत गुस्सा आता था. And like you mentioned in your last classes, खाना delay होता था, the delay factor. I wasn't, concentrating on खाना अच्छा है कि नहीं. It was just the delay factor. 8 बजे का party जाते जाते 9:30 बज जाता है. And if you eat by 6:30, there's this 3 hours का gap. So now as a strategy, which my husband and mama suggested, तेरा गुस्सा शांत करने के लिए घर से पहले खा के जाया कर. फिर चाहे तुम थोड़ा कम खा लो, तो फिर now I don't get that anger. Otherwise my anger was towards the timing. हंगर. Yeah. नहीं, हंगर पैंक्स आते हैं और उसकी वजह से भी गुस्सा आता है. हाँ, सो लेशा खराब होती है. यू आर राइट, सो राइट. बिकॉज एक ही चीज दिमाग में घूम रही होती है, यार खाना चाहिए, खाना चाहिए, 6 बजे खाना चाहिए होता है ना, और मिल रहा होता है 9:30 बजे. आई कैन अंडरस्टैंड के होता है. सो दैट्स अ गुड स्ट्रेटेजी. खा के जाओ अपने टाइम पे, चाहे आधा खा के जाओ, आधा वहां भी खा लो. टोटली फाइन. गुड आइडिया शिल्पा. दैट्स अ गुड स्ट्रेटेजी ऑल्सो ऑन लेशा. सी, इसने ना अलग अलग एरियाज में वर्क करके शी इज गिवन अ कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया, राइट? it'll give you insight. शोभा जी, आपको insights तो मिल रहे हैं ना कि कैसे हो सकता है situations, right? Yeah, Shilpa, carry on with your examples. Yeah. Then Papa, when he taught us driving, Papa always used to say, देखो अब अगर आप ड्राइव कर रहे हो, अगर कोई स्क्रैच वगैरह पड़ जाए, सबसे पहले कांच नीचे करके सॉरी बोल देना. एंड वी यूज्ड टू थिंक कि क्यों बोले ऐसे. पापा वाज लाइक, रोड रेज में अगर होगा, इट विल जस्ट क्रिएट दिस डोमिनो इफेक्ट. आपको गुस्सा आया, आपने उसको पास किया, उसने तीसरे को पास किया, एंड इट विल बी अ मैसिव थिंग ऑन द रोड. एंड दिस इज रियली वर्क विद माई पैथेटिक ड्राइविंग. मैंने कितनों को स्क्रैच मारा होगा, लकीली नो हर्ट, बट इट्स जस्ट अ स्क्रैच. एवरी टाइम कांच नीचे करके विद अ स्माइल, एंड 99% ऑफ द टाइम पीपल आर लाइक, इट्स ओके, जाने दें. ओनली द कॉप सेड, घर में रसीद आई है, जो ठीक है, मैनेज हो जाता है. बट एटलीस्ट ऑन द रोड पीपल हैव नॉट क्रिएटेड अ हंगामा बिकॉज ऑफ व्हाट पापा taught us. Very good. This is so true. कहते हैं, we know we see videos when one person does, एक आदमी दूसरे आदमी के लिए अच्छा करता है, तो वो आदमी तीसरे आदमी के लिए अच्छा करता है, वो तीसरा आदमी चौथे आदमी के लिए अच्छा करता है. That's a whole domino effect, right? So negativity भी ऐसे ही फैलती है, और हमको मजा आता है, ये negativity, किसी की एनर्जी पुल करके, राइट, किसी को गाली गलौज करके करना, हमको तो लगता है हमको बड़ा अच्छा लगा. बट वी डोंट रियलाइज कि वो जिसके साथ हमने बुरा किया, उसको कितना लो फील हो रहा है. लो फील होने की वजह से वो भी जाके किसी को गाली देगा और अपने आप को बेटर फील करवाएगा. एंड द होल डोमिनो इफेक्ट से द होल एनवायरमेंट विल बिकम लेशा. या इवन दो परंपरा की क्रिया नहीं लगती है, फिर भी why did you start that क्रिया also? पहली क्रिया तो लगी ना तुमको, right? So you are right. ये रोड रेज की वजह से हो सके ना तो बी हम्बल, बी सॉरी, मोर अबाउट, यार किसी को मजा नहीं आ रहा स्क्रैच करके गाड़ी, वी आर वेरी सॉरी अबाउट व्हाट हैपेंड, राइट? सॉरी कर दो. लेट अस गो बियॉन्ड दैट कि अभी इसके बाद हम क्या करें, किसको किस चोट लगी है, कुछ नहीं लगी, चोट नहीं लगी है, इतना मैनेज हो जाएगा, चलो अपने अपने लाइफ में मैनेज कर लेंगे. शिल्पा, वेरी गुड एग्जाम्पल ऑल्सो. नेक्स्ट. Next is a very, very bad example. So, abhi 2 weeks ago, I was on a vacation and वापस आते वक्त जो फ्लाइट एयरलाइन था, उन्होंने फ्लाइट को रीशेड्यूल कर दिया. How did we come to know? When we went to the counter, then they are like, the flight is already overbooked, so you'll have to find out alternatives. So I was super mad, and literally at the airport, we were shouting at the top of our voice that हमारे साथ में ऐसे कर सकते हो, हमने तो 1 महीने पहले बुक किया था, we have small kids with us and everything. The pitch was really, really high. तब तक तो ठीक था. Me and my husband discussed that this is a strategy.
कि they'll give us an earlier flight. Otherwise, they were saying कि wait for 24 hours, and there was no compensation and everything. And we had to go back, and it was an international location, so it was a lot of disconvenience. तब तक तो ठीक था. The Leisha was maybe a Kaput Leisha, but उसके बाद में my thought went to such a cruel extent. तब तक तो I was behaving uncivilized. और ये जो आप उसमें जो characteristics आपने बताया, उसके बाद में it went to an extent that maybe उस वाली flight को कुछ होना था. So God to protect us is, doing it in a bad. And this thought continued for 5-10 minutes, and I'm like, what the hell am I doing? गुस्सा निकालना था, fighting for my rights is okay, it's justified, but not कि कोई और bad will happen to that, right? And I'm getting saved. So I was like, at least मुझे कृष्ण लेशा से कपूत लेशा पे आना है, शुक्ल लेशा no chance I can get in the next 1 hour because my anger will continue. So I really had to make efforts कि उतने extreme से कम एक base level लेशा तक तो आऊं, which is also bad, but at least that is better. That happened. I would just say that because of what I've learned from the class, उपयोग जल्दी से चल गया. अगर वो उपयोग नहीं चलता, I think it would have been a disastrous thinking in my mind, and I would have done so many Panchendriya Vad in my head also. Yeah, और it also shows कि तुमको वो जो एरोप्लेन में बैठे हुए जितने भी जीव थे ना, उनकी पड़ी नहीं थी. मतलब कि वो मर भी जाएं तो भी you'll be happy like thank God मैं तो सेव हो गई यार, ठीक है, भगवान ने मेरे को बचा लिया, राइट. बट बेसिकली वो नेगेटिव रिलेशनशिप शो करता है. सो दैट इज ऑल्सो अ गुड एग्जाम्पल. ये समझ में आया एग्जाम्पल शोभा जी? आपको समझ में आया? हाँ, हम लोगों के, हम जब हमारे साथ कुछ मतलब कुछ होता है ना, कुछ है कि हम रह जाते हैं तो हम सोचते हैं नहीं हमारे साथ अच्छा हुआ, बाकी सबके साथ और भी बुरा होने वाला था, राइट. और जब बुरा सोचते हैं ना, दैट बिकम्स अ नेगेटिव फैक्टर, राइट. एक बार एक सास ने मुझे ऐसे ही बोला था कि सफाई में तो जीव मरते ही है ना, सफाई घर की सफाई करो तो मुझे कहती है मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, मेरी तो बहू करती है, राइट. मतलब मेरी तो बहू करती है, मुझे कुछ करना नहीं पड़ता. मैंने कहा तेरी बहू के साथ क्या वैर परंपरा है दैट यू हैप्पी के जाके उसको पाप चिपकते हैं, तेरे को नहीं चिपकते, राइट. So something like that. And very good, Shilpa. This is a good example. Next. So इस केस में I was not targeting मैं तेजोलेशा में भी आऊं. I was like even कपोत तक भी आ जाए, wherein I'm behaving uncivilized, that is okay, but I need to come out of the Krishna Lesha. Then I messed up something at work. So this is because of the example that you shared last time. One of the strategy to control Lesha is do what is right. तो कुछ स्प्रेडशीट में गलती कर दिया, the formulas and everything, and at the result that what I had presented was totally wrong. Now this was supposed to be reviewed by my boss, and he also had an oversight, assuming कि data सही होगा. Now when the CEO was scolding, he did the right thing in terms of taking a stand and just owning it up that it was because of me. Shilpa actually sent it, but I overlooked it. Just by making that one statement, I think if he had not done that, if he had not taken the stand, I would have had that angst throughout, and I would have been in a bad Leisha. Just by doing that, creating that positivity around, by just owning it up himself, I think everyone around him, it's okay. But had he defended himself that nahi ye hua hai and everything, it would have gone in a negative Leisha, the pura environment. Very good. कंचन आंटी भी बोलती है कि तुम भी यदि क्लास में कुछ गलत पढ़ा दो, होता है ना कई बार कुछ पढ़ाया टेक्निकली, फिर पता लगा यार भूल गए थे यार, गलती से नंबर गलत हो गए थे, कुछ ना कुछ 19 भी टेक्निकल तो डिफरेंट गलतियां 50 होती है. कहती है अगली क्लास में जाओ, मिच्छा में दुकड़ो सॉरी बोल के आगे पढ़ाना चालू करो. तो मैंने कहा आंटी पर गलती हो गई है, उत्सूत्र पर रुकना. आंटी कहती है भाई छोटी छोटी टेक्निकल वर्ड में उत्सूत्र पर रुकना नहीं है, पूरे कॉन्सेप्ट गलत के गलत चले जाए, सामने वाले को तुमने मिथ्यात्व में डाल दिया और ऐसे सब मुसीबतें खड़ी हो जाए, सामने वाले आदमी का वैराग्य को एकदम क्रैश कर दिया, ये सब चीजें जो होती है ना, इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन खड़ी होती है. ये 19-20 जब तुमने वो होता है ना टेक्निकल गलती कर दी, 4 का 6 बोल दिया, 6 का 10 बोल दिया, नंबर्स और छोटे मोटे जो प्रॉब्लम्स होते हैं, फेयर इनफ, अगली क्लास से मिच्छा में दुक्कड़म बोलो और आगे बढ़ो, राइट. सो सामने वाले को भी पता है कि यार गलती से गलती होती है यार, इसमें इतना बड़ा इशू बनाने की जरूरत नहीं होती है, राइट. So everybody in my class also and otherwise also know that not to make a big issue out of small mistakes or technical mistakes, because वो again ज्ञान का डिपार्टमेंट है और ज्ञान का डिपार्टमेंट हमेशा कॉम्प्रोमाइज रहेगा. मतलब ज्ञान कभी परफेक्ट नहीं होगा जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा, तो उसमें 19-20 रहेगा. तो हमको
ज्ञान 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 करके, अरे ज्ञान में गलत है, ज्ञान में गलत करके चिल्ला चिल्ली नहीं करनी है, ठीक है। डू द राइट थिंग, एज यू सेड, डू द राइट थिंग, मतलब ओनिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस आई डिड अ मिस्टेक, yes I was at fault, yes I did not know, yes I am saying मिच्छामि दुक्कडम, it should not happen again, ठीक है शिल्पा। सो ओनिंग, आप सास भी कर सकती है यदि उसने गलती की है, बहू ने गलती की है, दे शुड ऑल्सो गो एंड टेल द मदर इन लॉ, यस मैंने गलती की है, मुझे नहीं करना चाहिए था, ठीक है। कभी कभी हमारा मेड सर्वेंट के साथ भी ये सब इश्यूज हो जाते हैं, ऑफिस से आए हो और यू आर एंग्री फॉर सम रीजन, निकाला किस पे, मेड सर्वेंट ने चाय ठीक से नहीं बनाई, या मेड सर्वेंट ने खाना जो बोला था वो वैसा नहीं बनाया, फिर भी उसको डांट पड़ती है ना। अब क्या, सर्वेंट्स की लाइफ वैसे नहीं खराब होती, उनकी फैमिली लाइफ में भी तो कभी उतार चढ़ाव चलते ही रहते हैं ना। ऊपर से हम भी गाली गलौज और उसको खरी खोटी सुनाएंगे, बेचारे वो कहाँ, कितनी सैडनेस हो जाएगी उनकी लाइफ में, राइट। सो डू द राइट थिंग। गलती कर भी दी है, कभी चिल्ला चिल्ली निकल भी जाती है ना मेड सर्वेंट के पास, एट द अर्लीस्ट जाके उसको अपोलोजाइज कर लो, कोई छोटा नहीं बनता है अपोलोजाइज करके, ठीक है। मेरे घर में ना माय मेड सर्वेंट्स कीप टेलिंग मी दैट यू आर वेरी फनी। आते हो तो गुड मॉर्निंग बोला जाता है, यू नो, जैसे आते हैं हाय है गुड मॉर्निंग, कुछ ना कुछ, मतलब आई वुड से कैसे हो, यू नो, आई वुड से अ वेरी जेंटल, इवन टू द मेड्स की बात कर रही हूँ, राइट। जाते हुए बाय हो रही होती है, दे आर लाइक हु सेज बाय, यू नो, दिस काइंड ऑफ अ थिंग, राइट। व्हेन आई एम पेइंग देम मनी, यू नो सैलरी दे रही होती तो आई एम लाइक थैंक यू, आपने मेरी बहुत ध्यान रखा, मेरी बहुत सेवा की है, you have been a tremendous help. Small human gestures are very important. Do the right thing, Shilpa, is very important, right? Yeah, Shobha ji, you wanted to add something to that? हाँ, जैसे शिल्पा जी ने बोला था कि जब किसी और की फ्लाइट में वो लोग थे और यू थिंक कि आई एम सेफ, ऐसे ही लाइक व्हेन आई हैव सम प्रॉब्लम एंड किसी और को जब बात करते हैं और वो बताता है कि अरे मेरा तो ऐसे 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 और ऐसा है, तो देन यू फील समटाइम्स यू फील ओ उसके भी है, लाइक यू नो यू स्टार्ट फीलिंग लिटिल नाइस, देन यू टेल योरसेल्फ हेलो, यू कांट से दैट वो गलत एशिया है, व्हाई शुड Yeah. यू थिंक, बहुत बार ऐसे होता है, नोटिस कि कोई और बताता है ना कि अरे माइंड नो यार शी हैज यार उसका तो मेरे से थोड़ा ज्यादा है, तो वो लेशिया एक्चुअली हल्की सी गलत हो जाती है। हाँ, so you have to बस उपयोग में रहना है उसमें again, right? Very good. Shilpa, more examples? One last one, Didi. You always used to talk about the delay strategy. That अगर आपको गुस्सा आए, as शावक we cannot control all मन वचन काया. So मन को control करो, वचन से just delay it for 15 minutes. So I used to practice that. उस time नहीं बोलूंगी, I'll talk it out after 15 minutes. And what would happen in that react versus response, that strategy भी form हो जाता है. And जो आपका otherwise you would have used like really really harsh words. I think 15 minutes is a good enough time, वो अपने आप mellow down हो जाते हैं, and the words that come out from your mouth are a little more toned down, not so harsh, yet the same message सामने वाले को reach out हो जाता है. लेशा improve हो जाती है in that time. With practice it had come. Okay, so delaying technique, especially जब गुस्सा आता है या लोभ आता है या मान आता है, डिसीजन मेकिंग में यदि ज्यादा टाइम मिलता है तुमको डिसीजन मेकिंग में, तो थोड़ा कंट्रोल्ड डिसीजन मिलता है, मतलब डिसीजन में तुम लेशा को भी फैक्टर इन करते हो कि नहीं यार इसमें क्रूरता, सामने वाले के साथ कुछ ज्यादा ही तो नाइंसाफी नहीं हो जाएगी ना, ज्यादा खरी खोटी, ठीक है उसने गलती, मतलब जो भी नेगेटिव बोलना है कितना बोलना है, राइट। In fact, Shilpa, this I think works. This is a good reminder to me also, because I am going through that phase of contemplating. I always say the right thing. Okay, whenever whatever I feel like ना मैं बोल देती हूँ, ठीक है, मुंह से खटाक से बोल देती हूँ. And I'm proud that I don't keep it with me. जो मुझे बोलना होता है ना सामने वाले को सुना देती हूँ. अब सामने वाले को नहीं समझ में आए, नहीं सुनना है, नहीं समझ में आए, that is that person's problem. Okay, Shilpa. बट नाउ आई एम रियलाइजिंग कि बोल के भी क्या फायदा, वो सुधर थोड़ी ना जाते हैं लोग, राइट। हाँ, हो सके ना तो इग्नोर मारो एंड इग्नोर दोस पीपल ऑल टुगेदर। एंड हम लोग को क्या लगता है, जब तक हम सुना ना दे सामने वाले को, तब तक हमको यू नो वी डोंट गेट अ क्लोजर, राइट। यू डोंट नीड अ क्लोजर, लीव इट एट दैट, नहीं तो और मुसीबतें ही खड़ी होती है। शिल्पा, इज दैट व्हाट यू मेंट के डिलेइंग टेक्निक्स भी करो, राइट। सो उससे लेशा संभलती है। सो जरूरी नहीं, सामने वाले को असलियत बताने की भी जरूरत नहीं होती है। जैन धर्म के अंदर भी लॉट ऑफ पीपल कीप ऑन डूइंग द रॉन्ग थिंग्स। हमको पता लगता है ना कि उसने तो हवन किया, जैनिज्म में हवन कर रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, चुप रहते हैं यार। किसी ने एडवाइस मांगी तुम्हारी कि भैया क्या बता दो हमको क्या करना चाहिए था,
वो तो अपनी एकड़ी दिखा रहे थे कि भैया हमने तो इतना बड़ा काम कर लिया। चुप रहो, सच बोलने की भी जरूरत नहीं है, डिले इट, राइट। लॉट ऑफ टाइम्स महावीर स्वामी भगवान भी मौन रहते हैं ना जब कोई अन्य तीर्थी आते हैं ऑल दोस थिंग्स, तो वैसा समझ के चुप रहो, ठीक है, डिलेइंग टेक्निक्स। सो इट्स ऑल्सो लर्निंग लेसन के कई बार डिले 15 मिनट का भी कर सकते हो और कई बार यू कैन डिले फॉर एवर। फॉर एवर का मतलब है बोलना ही नहीं है जा, ठीक है, दैट कैन ऑल्सो बी डिलेड, मतलब फॉर एवर डिलेड, राइट शिल्पा? फेयर इनफ। और कोई शिल्पा एग्जांपल, good Just example? this one, Didi. For me, this has really helped because the impulsive nature, you know, what we've taught in corporate school, ki bas bolna hai, make your presence felt and everything. I think this delay strategy has helped save relations, I would say, take better decisions at time, even from an Anikantwant ka angle. Because कई बार ऐसे लगता है कि अगर मैं उसी टाइम बोल देती, there were so many angles that I would have probably missed out on. So this has helped me a lot. Oh, I'm pretty happy ke this thing. So I hope kisi actually her examples were so good. मैंने कहा just come to the class, say and go. Thank you so much, Shilpa. If you want to go, I know you have meetings. You can go back to the meetings, okay? Thank you so much. Continue Now till what? 3. Huh? Huh? I'll Thank you, Shilpa. continue till 3. Yeah. Now इस ये जो टॉपिक है इसमें से किसी को डिस्कशन करना है, जो शिल्पा ने बताया उस पर किसी को डिस्कशन करना है? चंचल जी, आपको कोई सवाल है, कोई ऑब्जेक्शंस है वो टॉपिक पे? पिछली क्लास में आपने जो उनको बताया था गुलेचा, प्रमीला जी को, हाँ प्रमीला जी का एग्जाम्पल जो था और उस पे जो आपने बताया था, पर कई बार मुझे भी ऐसा लगता है कि हमारी जो आदत पड़ी हुई है कि हम वो क्रिया की आदत हो जाती है और जब तक नहीं करते ना तो थोड़ा अनईजी लगता है कि नहीं कर लेना चाहिए। भाव न होते हुए भी कई बार क्रिया कर लेते हैं। एग्जाम्पल पर आपकी वो क्लास से मुझे लगा कि कौन एग्जाम्पल जैसे मुझे रोज समय करने की आदत है, ठीक है, हाँ, तो पर भाव कोई नहीं दिन हुए आलस आ रहा, हाँ आलस आ रहा है, नहीं फिर भी ऐसा लगता है नहीं चलो समय कर लूं, भले ही उसमें थोड़ी सी नींद भी आ जाती है, थोड़ा ये भी हो जाता है। तो उस क्लास से मुझे लगा कि ये हमारी एक क्या जमे हुए संस्कार है कि हमको ये कर लेना चाहिए। हालांकि विचारों में कई बार वो रहता है और कई बार रुक भी जाता है, वो विचार उस जगह नहीं जा पाते हैं, मोक्ष की अभिलाषा की तरफ या सम्यक दर्शन की तरफ नहीं जा पाते हैं। तो गलत तो है वो कि भाई आपके भाव पर सही नहीं व्यवहार है और नहीं, आप क्रिया पर कर रहे हो। चंचल जी व्यवहार नहीं से तो हुई ना समय की निश्चय नहीं भी क्रिएट कर पाए, तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। मैं तो व्यवहार नहीं एक्सेप्ट कर लूंगी यदि निश्चय नहीं भी हुआ ना, राइट? क्योंकि कई बार क्या होता है, अंतराय कर्म का इतना प्रगाढ़ उदय होता है कि हम लोग यदि व्यवहार नहीं भी टिका लेना तो भी बहुत बड़ी बात है। पर जिस दिन अंतराय कर्म का शोभशम ज्यादा होगा उस दिन निश्चय से भी दोनों से खींचेंगे, ठीक है? तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग करके व्यवहार नहीं से एंजॉय करो, चंचल जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उस दिन लेशा नहीं भी संभली, समायक में गुस्सा भी आया ना, तो भी बार बार आप देख तो रहे हो अपने गुस्से को, देख समायक में है और तू गुस्सा कर रही है, समायक में और गुस्सा कर रही है, ये भी तो कह रही हो ना। सो दैट कैन ऑल्सो बी वॉच्ड ऑन। और आप जो बोलते हैं ना कई चीजें संस्कार रूप में बन जाती है, रोज सुबह उठो समायक करो, तो इसको ही तो अनकॉन्शियस माइंड बोलते हैं ना, अनकॉन्शियस माइंड। तो मैंने आपको पहले दिन ही बोला था कि अनादिकाल के संस्कार क्या है, उठो चाय पियो, खाना क्या बना है खाना खाओ। अनादिकाल से 4 संज्ञा, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह, ये चारों में हम ऐसे घुसे हुए हैं, राइट? तो यदि इस भव के अंदर हमने एक और मतलब अनादिकाल के संस्कार में एक संस्कार डाला कि उठते सार यार पहले समायक पच को, उसके बाद कुछ मतलब उठ के चाय वाय कियो, तो ये भी मन नहीं भी किया, मान लो आज मुझे फिर भी मैंने किया ना, तो क्या पता ये संस्कार मुझे अगले भव में भी लेके जाए, क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड तो अगले भव में भी ले जाएगा ना। याद रखना मैक्सिमम काम आप किससे करते हो, कॉन्शियस माइंड से नहीं करते हो। मैक्सिमम काम आप अनकॉन्शियस माइंड से कर रहे होते हो, मैक्सिमम 90% 90% से ज्यादा काम, ये मैं 90% तो मैं अपने पॉकेट से बोल रही हूँ,
व्हाट आई मीन, मैक्सिमम जो काम होता है ना अनकॉन्शियस माइंड करता है। कार कौन चलाता है? अनकॉन्शियस माइंड चलाता है। हाँ, पार्किंग में शायद आपका कॉन्शियस माइंड यूज होता है, पर देखो आप कार चला रहे होगे ना इतने सालों से, तो आराम से पड़ोस में जो बैठा है आप आराम से बातें कर रहे हो, फोन भी ले रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, अनकॉन्शियस माइंड में काम कर रहे हो, राइट। रोटी बना रहे हो, कैसे कर रहे हो? रोटी के करते वक्त मैं आपसे बात करूं तो आप ये थोड़ा ना बोलते हो अरे यार आवाज मत कर मेरी, फिर टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, फिर मैं पलेथन लगाना भूल जाऊंगी या मैं तवे पे डालना भूल जाऊंगी। आप ऐसे थोड़ी ना बोलते हो। एकदम परफेक्ट कर लेते हो ना। मोस्ट ऑफ आवर जॉब्स आर अनकॉन्शियस, संस्कार बन चुके हैं अनादिकाल के। तो हमारे क्या रिस्पॉन्स होते हैं कि मैंने जैसे ही आपको बोला ना चंचल जी अब तो बड़े गंदे दिखते हो, तो अनादिकाल के संस्कार क्या है? गुस्से हो जाना, ऐसे ही क्योंकि हाँ सबको बुरा बोल दिए, हमेशा मैं क्यों बुरी हूं, मतलब गुस्सा आ जाना इज अ फर्स्ट गो टू रिस्पॉन्स, राइट। अनादिकाल के संस्कार चेंज करना है, क्या करने हैं, राइट। कि यार सचमुच उसने मुझे क्यों बोला, मैं क्या गंदी हूँ, किस नए से, किस एंगल से मैं गंदी हूँ, राइट। समझ गए हो? क्या मैं नहीं नहीं हूँ, हाँ जी, हाँ जी। राइट। इस वजह से नहीं, मतलब यू कैन रीजन इट आउट चंचल जी, राइट। सो दैट इज ऑल्सो गुड। एनी मोर बडी वांट्स टू ऐड टू दैट? मेन थिंग है कि उस वक्त आपका उपयोग चलना चाहिए, जो चीज भी है उसमें आपका उपयोग चलना चाहिए। व्हाट इज मोक्ष मार्ग? मोक्ष मार्ग तीन लोगों का, जिनकल्पी, साधु और श्रावक, तीनों लोगों का एक ही है। क्या है? मोक्ष मार्ग। पहले 190 क्लासेस मैंने मोक्ष मार्ग पे किए हैं ना, राइट। तो वो मोक्ष मार्ग ही तो करना है आपको। तो हमको भी तो मोक्ष मार्ग करना है, श्रावक को भी तो दिमाग से तो मोक्ष मार्ग करना है ना। बॉडी से ठीक है श्रावक पना पालना है, मतलब बॉडी से जो घर के काम करने हैं, बाकी तो मोक्ष मार्ग ही करना है ना ब्रेन से, राइट। सो चंचल जी दिस इज वेरी बिग मस्ट, ठीक है, कि आप मोक्ष मार्ग पे कमांड हासिल करो। मोक्ष मार्ग में इतनी कमांड होनी चाहिए कि आधी रात को भी यदि आपका कोई मर्डर करने आता है रात को 2 बजे, तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड ऑन व्हाट टू डू, द प्रोटोकॉल्स ऑफ मोक्ष मार्ग। याद रखना, आधी रात को हार्ट अटैक आपको आता है, आधी रात को कुछ भी हो सकता है, क्या मोक्ष मार्ग बोलता है? यू शुड बी एबल टू क्लिक फास्ट चंचल जी, ठीक है। कल की क्लास में ना मैंने ना लास्ट में ना कुछ एक टॉपिक लिया था जिसमें बताया था कि जो चारित्र है ना उसमें हम लोग है ना जो व्रत पचखान को ना जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं दैट वी फॉरगेट टू लुक एट अ बिगर पिक्चर, राइट है। मैंने कल वो भीष्म पितामह की स्टोरी से आपको बताया था ना कि द बिगर पिक्चर वाज सेविंग द लेडी जिसका चीरहरण हो रहा था, wasn't saving her more important than taking care of your व्रत, राइट। क्या जैन धर्म इसमें बिलीव करता है? इसके प्रूफ आप दे सकते हो? कोई प्रूफ दे पाएगा इसका? किसी के पास है? साधु का एक तो है रूल, साधु के रूल्स होते हैं ना, जैसे 5 महाव्रत, 5 समति, 3 ये सब रूल्स हैं, ठीक है। एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं अपवाद मार्ग। किसी ने सुना है अपवाद मार्ग के बारे में? हाँ शोभा जी, आपने नहीं सुना अपवाद मार्ग के बारे में? जब साधु का कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है ना, मतलब जब साधु पना पढ़ाया जाता है ना, तो रूल्स तो बहुत इजी है, सबको आते हैं, बट मेन ट्रिक लाइज इन द अपवाद मार्ग। आप बोलोगे ये अपवाद मार्ग है क्या? अपवाद मार्ग इज द डेविएशन इन द रूल्स, ठीक है। तो आप बोलोगे भैया ये डेविएशन इन द रूल्स क्यों है? जो डेविएशन ऑन द रूल्स है ना वो भी रूल्स बन जाते हैं आगे आगे जाके, तो वो डेविएशन क्यों है? ओके, बिकॉज देर इज समथिंग बिगर एट प्ले। ओके, आई गिव यू एन एग्जाम्पल। साधु एकेंद्रीय जीवों को, जैसे सचित पानी को ये सब टच नहीं करता है, तो क्या वो पानी में तैर सकता है, पानी में टच कर सकता है? नहीं कर सकता है ना। तो आप बोलोगे ऑब्वियसली नहीं कर पाएगा यार, वो तो सचित का एकेंद्रीय का पिंड है। इन दैट केस एक आदमी उस नदी में बहता हुआ जा रहा है, किस में बहता हुआ जा रहा है? नदी में वो होता है ना, कभी बाढ़ आ जाती है तो बहता हुआ जा रहा है। साधु एक एक अंदर मतलब एक पैर अंदर डाल के जल्दी से उस आदमी को खींच के बाहर निकाल सकता है, राइट।
तो आप बोलोगे भैया नहीं निकाल सकता, वो तो पानी के जीव में तो पैर ही नहीं रख सकता, तो पैर में जाके हाथ से खींच के उसको कैसे बचाएगा, उसकी जान कैसे बचाएगा, नहीं बचा सकता। और यदि बचाने के बाद ये पता लगा कि वो आदमी मतलब यदि मेल साधु था और वो जिसको बचाया वो फीमेल थी, तो उसमें तो स्त्री संघट्टा भी हो गया, मतलब 2-3 और रूल्स ब्रेक हो गए। तो क्या ये साधु कर सकता है कि नहीं कर सकता है? तो आंसर है अपवाद मार्ग सेज कैन डू। फिर आप थोड़ी सी ऑब्जेक्शन प्राइवेट दोगे, लेनी, फिर थोड़ा सा प्राइवेट लेना पड़ता हो, जो भी प्रायश्चित लेना पड़ता हो, पर बट अगर अपवाद दान है तो मार्ग, बिगड़ दान। या अपवाद मार्ग है ना, डेविएशन इन द रूल्स होते हैं, राइट। डेविएशन इन द रूल्स का मतलब कि यार ये रूल्स अलाउ होता है कि प्लीज पहले उस आदमी को बचाओ। तो आप बोलोगे कि आगम बोलता है कि पानी के जीव और जो मनुष्य का जीव जो बह के जा रहा था, यदि वो नहीं पकड़ता तो मर जाता ना, राइट, पानी में डूब जाता। तो दोनों का लेवल सेम है, इवन दो लेवल सेम है। व्यवहार ने क्या बोलता है, वो पंचेंद्रिय और वो एकेंद्रिय है, बचाओ उस पंद्रिय, दैट इज द बिगर पिक्चर, पंचेंद्रिय को बचाओ, राइट, पानी में पैर डालो और बचाओ, अंडरस्टूड, लुक एट अ बिगर पिक्चर, ठीक है। फिर आप बोलोगे अरे स्त्री संघट्टा हो गया, अबे स्त्री संघट्टा छोड़ो, पहले उसकी जान बची वो नहीं दिख रही है तुमको, है ना। जैसे एक और एग्जांपल देती हूँ पानी के जीवों के बारे में ही। पानी के जीव जो है, आप पानी में जा नहीं सकते हो, मर जाएंगे जीव। नेक्स्ट सवाल खड़ा होता है कि अपवाद मार्ग है कि साधु एक जगह पे एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक नहीं रह सकता, शेष काल और चौमासे काल का थोड़ा ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं, उसके बाद रह ही नहीं सकता। और इसके डेविएशन रूल्स ये कहते हैं अपवाद मार्ग कि आपको यदि नदी उतरना पड़े, नदी उतरना पड़े मतलब बोट में बैठ के आपको रिवर क्रॉस करनी पड़े, तो आप महीने में 2 बार और साल में आई थिंक 7 या 9 टाइम्स आप उतर सकते हो, ऐसा कोई रूल है मैक्सिमम, ठीक है, कर सकते हो। अब वो कैसे उतर सकते हो, आप क्यों कैसे बोट में बैठ के जा सकते हो कि टेक्निकली तो जीव मर रहे हैं। बिकॉज द बिगर पिक्चर इज कि आप यदि साधु किसी वजह से एक जगह पे रह गया, तो राग और द्वेष उत्पन्न होगा, किसके साथ, श्रावक के साथ, और वो संभालना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साधु को वीतराग बनना उसका एम है, राइट। तो एक जगह पे साधु रह ही नहीं सकता, उसमें कोई मतलब क्लेरिफाइड है कि भैया अनलेस देयर इज अ मेडिकल रीजन यू कैन नॉट स्टे एट वन प्लेस, कम व्हाट में। इवन ज्ञान या कोई बड़ा सेलिब्रेशन के वजह से भी आप एक जगह पे प्रिस्क्राइब टाइम से ज्यादा नहीं रह सकते, आपको हटना पड़ेगा वहां से। उसके लिए नदी उतरना पड़े तो नदी उतर जाओगे, अंडरस्टूड व्हाई द बिगर पिक्चर इज एक जगह पे नहीं रह सकते एक क्लॉज पे। सो ये अपवाद मार्ग इटसेल्फ इज मेड इन अ वे कि लुक एट अ बिगर पिक्चर। आपको पता है साधु के लिए ये भी क्लॉज है कि कोई साधु प्रदूषण के दिन में, हम लोग सब अठाइयां करते हैं ना, व्रत पचकान करते हैं, तो साधु भगवान तो कभी बड़ा मन करता है कि हम ढेर सारा तपस्याएं करें प्रदूषण में। तो वो लोग क्या, सब लोग यदि करने बैठ जाएंगे सभी साधु लोग, तो कैसे चलेगा, क्योंकि उनको श्रावकों को भी तो, के वैराग्य को भी तो संभालना है, उनको आगम पढ़ के सुनाने हैं, उनको भी तो धक्का मारना है ना 8 दिन, राइट, पर से खुद की तपस्या कैसे मैनेज करेंगे। तो आचार्य क्या बोलता है, आचार्य पहले सबसे, आचार्य नहीं तो गुरनी भी, गुरनी का मतलब एनीबडी हुज हेड, राइट, वो क्या डिसाइड करता है, पूछता है कि आपके पोजीशन में क्या भाव है करने की। मान लो सब साधु बोले कि हम 28 करना चाहते हैं, तो वो 1 या 2 साधु को क्या बोलेगा कि तुम्हें ना 20-25 दिन या 1 महीना पहले ही 28 करके व्रत कर लो, प्रदूषण की 28 अभी कर लो। आप बोलोगे 20 दिन 1 महीना पहले प्रदूषण की 28 अभी से करने को क्यों बोला जा रहा है? उसको बोलते हैं पूर्व तप, मतलब तपस्या जो पहले कर ली गई है या तपस्या बाद में कर ली गई है, पर उन दिनों में नहीं की गई है। क्यों? क्योंकि गुरु जानता है कि यदि सब लोग तपस्या करके बैठेंगे तो वयावच कौन करेगा। तो वो क्या करता है, उनमें से सबसे केपेबल आदमी को ना पहले और बाद में तपस्याएं करवाता है, और क्या बोलता है, तुम उस टाइम पे जब सब तपस्या करे तब तुम उनकी वयावच का भी लाभ ले लेना, डबल फायदा तुमको। तो इसलिए ना यू लुकिंग एट अ बिगर पिक्चर। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ
चारित्र जो है ना बॉडी की कैपेसिटी के हिसाब से ही करना है, कभी ज्यादा नहीं करना है, पुश भी नहीं करना है, ये भी नहीं बोलना मेरा पति नहीं करता है, राइट। अरे चौथा गुण स्थान वाला तीर्थंकर नाम गोत्र बांध रहा है, इसका मतलब 0 चारित्र वाला, राइट। माइंड से संवर ऑपरेशनल हो जाता है ना यदि, राइट, तो आप तीर्थंकर नाम गोत्र भी बांध लोगे, माइंड से यदि चला जाता है। बॉडी का काम था माइंड तक पहुंचना, पर माइंड डायरेक्टली चला गया और बॉडी से आप नहीं कर पाए किसी वजह से, चलेगा। अंडरस्टूड। सबकी बॉडीली कैपेसिटी नहीं होती है। तो महावीर स्वामी भगवान या फॉर दैट मैटर एनी तीर्थंकर जानते हैं कि तुम नहीं कर सकते भाई, तुम रहो ना श्रावक, राइट। कोई मुझे पूछता है क्या मैं चप्पल पहन के मैं मारासा की वेट करूं, किसके लिए वेट करूं, सुपात्र दान की भावना भाऊं, तो चप्पल पहन के भाऊं कि चप्पल उतार के भाऊं। मैंने कहा भाई तू श्रावक है, श्रावक बन के रहे, तू घर में चप्पल पहन के घूमता है तो चप्पल पहन के सुपात्रदान की भावना भाना। कहते नहीं मारासा की वेट करनी है तो चप्पल उतार के करूंगी। मैंने कहा ये कोई रूल ही नहीं हुआ है, ये कहीं का रूल नहीं है। तुम श्रावक हो, अपने लेवल पे रहो, तुम चप्पल पहन के रहते हो, चप्पल पहन के सुपात्रदान की भावना भाव। रात को 2, फिर वो पूछते हैं क्या रात को 2 बजे भी क्या मेरे खाना खा लेने के बाद भी मैं भावना भा सकती हूँ, दैट वाज द क्वेश्चन। एंड आई वाज लाइक व्हाट। अरे सिर्फ खाना ही तो नहीं चाहिए ना उनको, उनको तो घर चाहिए हो सकता है रहने के लिए, उनको आगम्स चाहिए हो सकते हैं, बुक्स चाहिए हो सकती है, उनको दवाइयां चाहिए हो सकती है, कुछ भी चाहिए हो सकता है, राइट। तो मैंने कहा दिन में कभी भी भावना भाव के वो आए, कुछ नहीं तो आधी रात को 2 बजे भी भावना 10 तरीके की भावना भा सकते हो। वाई एम आई गिविंग यू दीज एग्जाम्पल्स आर टू लेट यू नो कि हम लोग भी है ना बहुत सारे लेशिया और ये सब चीजों के कॉन्सेप्ट्स कर रहे हैं। लेशिया इज इंटीग्रेटिंग विद 4 ध्यान, दिस इज इंटीग्रेटिंग विद संवर, ये कर रहा है, चारित्र में भी खिचड़ी बन रही है, राइट। सो हर चीज एक दूसरे को ज्वाइन कर रही हूं, मैं अभी ज्वाइन कर रही हूँ, राइट। लेशिया को मैं चारित्र से कैसे ज्वाइन कर रही हूँ कि पुश करोगे ना चारित्र तो लेशिया बिगड़ जाएगी। यदि मैं आपको पुश करूंगी 28 करोगे ना तो लेशिया आपकी खराब हो जाएगी, आपके 3 दिन के बाद आपकी तबीयत खराब हो जाएगी ना, तो आपको गुस्सा आएगा ना, आशिम है ना, मैं मन करता है ना उसको ठोक दूं, जबरदस्ती करती है हर चीज में, गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, राइट। इसीलिए मैंने चारित्र में पहले दिन ही आपको बोल दिया था कि फोर्स मत करना। तो लेशिया के साथ अभी मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब मैं क्या बोल रही हूँ कि जो चारित्र इज डिपेंडेंट ऑन ह्यूमन बींग्स बॉडी, उस हिसाब अपनी बॉडी के हिसाब से जाओ, आपको साधु बनने की जरूरत नहीं है। आराम से श्रावक बन के एसी में बैठ के आराम से भी मतलब कायोत्सव कर सकते हो, आगम पढ़ सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, मतलब देयर इज नथिंग यू कैन नॉट डू। अपना चारित्र पालो, ठीक है। एक तो चारित्र पालो, और यदि लेशिया बिगड़े इसका मतलब यू हैव रीच्ड योर थ्रेशोल्ड, प्लीज चेंज कर दो अपना सिचुएशन। देखो लेशिया कितना अच्छा सबके साथ बैठ रहा है, लेशिया ज्ञान के साथ भी आराम से बैठेगा। ये चारित्र के साथ मैंने ज्वाइन किया लेशिया को, ज्ञान के साथ भी बैठेगा। ज्ञान करने के बाद लेशिया नहीं सुधरती है तो ज्ञान कर क्या रहे हो, कर क्या रहा है ज्ञान बेचारा, हाँ। इसका मतलब वो ठीक काम नहीं कर रहा है, वो तो कर्म बंद करवा के बिठा रहा है तुमको। तो लेशिया शुड बी बिकम अ काइंड ऑफ ए, मतलब सॉरी, ज्ञान शुड बिकम अ डिफेंस। डिफेंस मतलब वो आर्मर होता है ना जिससे आप अपने आप को डिफेंड करते हो। एक होता है तलवार और एक होता है भाला, नहीं वो होता है ना शील्ड, शील्ड जो होती है ना जो आपको डिफेंड करती है। ज्ञान कैन बिकम अ शील्ड जिससे आप गलत काम नहीं करो, सुधर जाओ। तो इस तरह से आप लेशिया को भी ज्वाइन कर सकते हो हर चीज में। हम लोगों ने पिछली क्लास में ना 5 आश्रम में प्रवृत्ति करने वाला का एक्टिविटीज देखी थी कि देखो ये 5 आश्रम तो कंटिन्यूसली है, साधु के तो फिर भी कम है, जिनकल्पी के तो ना के बराबर है, बट हम जैसे श्रावकों के तो यार 1 घंटे में 50 है, राइट। लर्न टू रिकग्नाइज कितना करना है कितना नहीं करना, करके आगे निकल जाओ। जो करना है, राइट, उसमें डाउट भी मत करो। जो नहीं करना है तो यार छोड़ दो। जैसे कई चीजें बोली ना, डिले कर सको, जितना कम कर सको भाग जाओ वहां से, सब कुछ आपके हाथ में है। फिर भी नहीं ऑप्शन है तो जाओ कर लो, जो लड़ना है जो कर लो, वो भी अलाउड है, ठीक है। एनीवे नेक्स्ट है 3 गुप्ती से अगुप्त। गुप्ती इज अबाउट नहीं करना। तो शिल्पा का जो आज एग्जाम्पल था ना,
गुस्सा आ रहा है, 15 मिनट का डिले टेक्निक, राइट। यहाँ शिल्पा का एक और एग्जाम्पल था कि डू द राइट थिंग, मतलब कुछ भी हो जाए मैं सही करूंगी, या तो नहीं करूंगी, यानी सही नहीं कर पाई तो मैं चुप हो जाऊंगी। तो गुप्ती के अंदर वो आता है, गुप्ती मतलब रुकना है, अपने आप को रोकना है, ठीक है। फिर 6 काया में अविरति। क्या आप विराधना बंद कर सकते हो? विराधना मतलब जीवों को मारना या गलत काम करना बंद कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। इसलिए माइंड में मोक्ष मार्ग करो, बॉडी से अलाउड है जो करना है, ठीक है। तो ये भी 6 कायाम में अविरति हो गई, ठीक है। तो 6 कायाम में विराधना करने वाला। सो आपको लग रहा है कि आप रोटी बना रहे हो तो विराधना कर रहे हो, नहीं, मैं तो सुपात्र दान की भावना या यत्ना कर रही हूँ ना, तो मैं इस लेशा में नहीं हूँ, कृष्ण लेशा में नहीं, क्योंकि माइंड की बात हो गई है, राइट। याद है ना, इट्स नॉट द बॉडीली एक्टिविटी, इट इज द माइंड। तीव्र भावों से आरंभ करने वाला शूद्र तुच्छ। कभी कभी जो गुस्सा आता है ना सामने वाले पे, जैसे एयरलाइन वाले पे गुस्सा आ गया, साले तूने मेरी टिकट ओवर बुकिंग करके, मेरी टिकट जो मैंने इतने पहले टिकट बुक कराई है, मेरी कैसे बम्प कर दी और किसी और को दे दी, राइट। यहाँ कई कई बार हमको बहुत गुस्सा आता है कि ये तो बहुत बड़ी मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, राइट। हाँ, सो हमको बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है, बहुत आरंभ भी हम करते हैं, मारधार सोचते हैं, मन तो करता है यार बॉम्ब डाल दो ऐसे आदमी के सर के ऊपर, ऐसा होता है ना कई बार। हाँ, कि जैसे किसी ने यदि मान लो सुसाइड बॉम्बिंग हुई, उसने 500 लोगों को मार डाला या थिंग्स लाइक दैट, मन तो क्या करता है वैसे, आदमी के पूरे खानदान को तबाह कर दो। तो ये सारे जो भाव है ना, ये भी तो तीव्र भावों से आरंभ वाले भाव है ना। हाँ, ये सब चीजों पे मॉनिटर करो और इसको बंद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अननेसेसरी है, इसकी जरूरत नहीं है, और इससे कोई फायदा भी नहीं होने वाला, ठीक है। इजराइल पैलेस्टाइन में आई नो यू हैव अ स्टैंड, आई टोटली एग्री विद दो स्टैंड्स, राइट। वुड यू बी अलाउड टू गो एंड ज्वाइन आइदर ऑफ द फोर्सेस? नो ना, कुछ कर सकते हो? आर यू थैंकफुल दैट वी आर नॉट एट वॉर? हाफ द कौन कौन से कंट्रीज वॉर में नहीं है, यू डोंट रियलाइज, राइट। हाँ, जस्ट थैंक गॉड फॉर दैट। तो ब्रैकेट में ना किसी ने तुच्छ वर्ड भी यूज लिखा है, इट्स अ वेरी बिग गाली भगवान, मतलब लाइक आगम में किसी ने ये जो कमेंट्री देके तुच्छ लिखा ना, आई वाज लाइक ओ, एक्स्ट्रा गाली दी, एक्स्ट्रा गाली दी, मतलब अच्छा अभी तो तुच्छगिरी भी करेगा जा, तो कृष्ण लेशिया, राइट। क्या सामायिक में ये सब भाव नहीं आते हैं, ये सब तुच्छ आते हैं कि नहीं आते हैं? हाँ, इसका मतलब सामायिक में ऑल्सो यू कैन हैव दिस कृष्ण लेशिया। साहसिक, बिना विचारे काम करने वाला, ठीक है। अगेन, मैक्सिमम काम यदि हमारा अनकॉन्शियस माइंड कर रहा है, तो अनकॉन्शियस माइंड को रिट्रेन करो, अच्छे से रिट्रेन करो। और यदि तुमने एक बार अच्छे से रिट्रेन कर दिया है ना, ये भव भी सुधर जाएगा और अगला भव भी कितने सुधर जाएंगे, राइट। तो बिना विचारे आप काम ही नहीं करोगे। जैसे मैंने आपको बोला, शिल्पा यू आर सो लेजी, यू आर सो स्लो, राइट। तो तुम क्या बोलोगे, यार ये सामने वाला आदमी ने किसी एंगल से तो बोला है, किस एंगल से बोला है? अनेकांतवाद तो एक ही वस्तु पे अनंत एंगल बोल रहा है, राइट। किस एंगल से तूने मुझे लेजी और स्लो बोला, राइट। ये पूछो, इतना टाइम मिल जाएगा ना आपको पूछने का। Why did you call me lazy? Why did you call me slow? Let me answer you the question. Once you hear that question, मतलब उनका आंसर तो सुन लो, तब शायद तुमको कुछ इंसाइट्स मिले अपने बारे में। बट ऐसे हमको गुस्सा आ जाता है, हमको लगता है लेजी इज अ बैड एडजेक्टिव, राइट। मैं आपको बताती हूँ ना, मेरे से लेजी आदमी नहीं है कोई। क्यों? मैं सबसे शॉर्टकट ढूंढती हूँ, जैन धर्म में भी मैं शॉर्टकट ढूंढ रही होती हूँ। मुझे पता है वो करने से इतनी निर्जरा, ये करने से इतनी निर्जरा, राइट। I know more speed of निर्जरा also I know, right? और मुझे पता है स्ट्रेटेजिकली कौन सी निर्जरा कब कैसे यूज करनी है, क्योंकि आई एम अ लेजी पर्सन, देयर इज नथिंग रॉन्ग
ये सारे जो एडजेक्टिव्स है ना, ये हमारे दिमाग में गंदे बने हुए हैं. There's nothing wrong about it, right? मैं लेजी थी ना, इसलिए महावीर स्वामी भगवान से पूछती थी, भगवान अपने से तो होता नहीं है इतना ज्ञान, कोई इजी तरीका बताओ. भगवान अपन से इतने चारित्र नहीं होता है, कोई इजी तरीका बताओ. राइट? तो भगवान क्या बोलते हैं, अच्छा चल सम्यक दर्शन कर ले डायरेक्टली. राइट? छोड़ ज्ञान को, छोड़ चारित्र को, डायरेक्टली सम्यक दर्शन कर लो. ओके? वयावच कर लो. राइट? सुपात्रता की भावना भा लो. राइट? विनय कर लो, वंदन नमस्कार कर लो, 24 तीर्थंकरों के नाम और उनका गुणगान कर लो. तो ये सब चीजें भी लेजी आदमी को, जब महावीर स्वामी भगवान ने बोला ना, तो लेजी आदमी हैप्पी होके काम कर रहा है ना. राइट? सो इस तरह से ना रीट्रेन योर माइंड, और अगले भव आप सुधर जाएगा आपका. ठीक है? एनीवे, निर्दयता के परिणाम वाला, निर्दयता के परिणाम वाला का मतलब ये है कि आपको खुशी मिलती है, आपके दुश्मन का कुछ बुरा हो जाए तो थोड़ी देर तो खुशी मिलेगी ना. मुझे तो बहुत मिलती है. राइट? मिलती है ना खुशी. हाँ, इसीलिए मैंने ना कहीं कहीं दुश्मन है ना पिन पॉइंट कर लिए हैं. उनमें ना महावीर स्वामी भगवान ने तो यस पुट हिज फुट डाउन कि इनके बारे में तो तुझे कुछ सोचना ही नहीं है. क्यों नहीं सोचना? बिकॉज आई हेट देम टू मच. इफ आई हेट देम, उनके बारे में कुछ बुरा होगा तो मैं खुश होंगी. राइट? सो ऐसा जब आप करते रहोगे ना कि यार मैं उसके बारे में सोचूंगी तो गंदा, सोचूंगी तो कर्म बंद होगा, तो सोचना ही नहीं है. तो आज के बाद क्या हुआ, यार मेरा उस आदमी के बारे में हमेशा बुरा ही सोच निकलती है. सोचना ही नहीं है. पाकिस्तान के बारे में सोचना ही नहीं. क्यों? कुछ अच्छा सोच ही नहीं सकती मैं उस कंट्री के बारे में, तो उस कंट्री के बारे में सोचना ही नहीं है. अंडरस्टूड? नहीं तो क्या सोचूंगी. मेरे जैसा बंदा क्या सोचेगा पाकिस्तान के बारे में? राइट? चाइना के बारे में क्या सोचेगा? खरी खोटी सोचेगा ना. राइट? सोचना ही नहीं है. जो दुश्मन है उनके बारे में नहीं सोचना, उनसे सिर्फ बच के रहना है. यू कैन क्रिएट डिफेंसेस फॉर योर सेल्फ, बट दुनिया में भी जो तुम्हारी सुख चैन खराब कर रहे हैं, who are bad for your emotional, mental, physical health, you can treat them as a barrier and say कि बॉस I am off you, मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचूंगी. ओके? पर क्योंकि सोचोगे तो निर्दयता के परिणाम ही आएंगे ना. सोचना ही बंद कर दो उनके बारे में. ठीक है? There has been a long time मैंने पाकिस्तान और चाइना के बारे में गंदा नहीं सोचा. सीरियसली, इट्स क्वाइट एन अचीवमेंट. हाँ? और एनीवे, क्रूर, आपको पता लग जाएगा कि आप क्रूर हो के नहीं. हाँ? कितने क्रूर हो? शिल्पा, हाउ क्रूर आर यू? इज योर लेवल ऑफ क्रूरता रिड्यूस्ड? हाँ? यस डेफिनेटली. वो ठीक है, आई थिंक उपयोग 10 मिनट में चल गया. इट डिडंट चल स्ट्रेच. यस. चल जाता है. कृष्ण लेशा से बाहर आ जाते हैं. नेक्स्ट है अजितेंद्रिय, इंद्रियों को वश में नहीं करने वाला. कई लोग होते हैं वो एक ही चीज बोलते हैं, आई वॉन्ट, आई फील. व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट? हाँ? पुद्गलों की आसक्ति में ही कई लोग लीन रहते हैं, हमेशा पुद्गलों की आसक्ति. द फर्स्ट थिंग व्हेन समबडी गेट्स अप, व्हाट डू दे आस्क? खाने में क्या बनाए? राइट? ये क्या है, ये क्या है, ये ठीक क्यों नहीं है, वो ठीक क्यों नहीं है. चू 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 चू, पुद्गल आसक्ति. हाउ डू यू रिड्यूस द पुद्गल आसक्ति? एनीबडी? पुद्गलों की आसक्ति कैसे कम की जा सकती है? गीतराज, पचकान लेने से उस चीज के प्रति आसक्ति कम हो जाती है. कैसे करके? पचकान लेने से. वेरी गुड. शिल्पा इज डॉट ऑन. उस चीज के बारे में पहचान लेना चालू कर दो एंड आसक्ति, पुद्गलों की आसक्ति खड़ा. तो बेसिकली हमारे जो 14 नियम, श्रावक के 12 व्रत कर क्या रहा है, हमारी आसक्ति को रिड्यूस करता चला जा रहा है. वो इतना करता चला जाएगा कि संधारे के टाइम आपकी आसक्ति अपने खुद के बॉडी से भी नहीं होगी. अपने बच्चों को भी आप वो सिरा चुके होगे, अपने पति पत्नी माँ बाप सबको आप वो सिरा चुके होगे, वो भी, उसकी भी आसक्ति नहीं रहेगी. तो घर और कपड़ों की तो पहले ही, मतलब मरने से 10 दिन पहले ही छूट चुकी होगी. ठीक है? संधारे के पहले ही छूट चुकी होगी. पर
खुद के बॉडी की भी, कि मेरा बॉडी जी जाए, मेरा बॉडी सरवाइव कर जाए, मेरे बॉडी में ये पेन नहीं रहे, ये आसक्ति भी जीरो हो चुकी होगी। ठीक है। इवन व्हेन आई जब अपन सवेरे उठते हैं और अपन सीधा निकल जावे स्थानक या दर्शन करने, तो दैट 3 घंटा जब आप नहीं हो तो वो वीतराग हावी हुआ ना, घर से वीतराग हो जाता है ना। लाइक आई एम नॉट कनेक्टिंग एनी माई सेल्फ टू एनीथिंग घर का चीज। वो वीतराग नहीं होता है, वीतराग इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, उसमें राग और द्वेष चला जाता है। Like I'll give you an example. If I'm excited, I used to be get excited about Kanchan Auntie's class early. जिस दिन हफ्ते में 2 दिन हम जाते थे ना, तो सुबह सुबह यदि हम एक्साइटेड होते थे सुबह से कि आंटी की क्लास में जाएंगे, हमको सीखने को मिलेगा, ये मिलेगा, एक्साइटेड, that is not शोभा जी वीतराग दशा, that is विनय, दैट इज विनय फॉर महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान, कि आज कंचन आंटी महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान को कैसे इजी करके बताएगी, आज भगवान के ज्ञान को वो कैसे प्रेजेंट करेगी, क्या महावीर स्वामी भगवान क्या बोलना चाहते हैं, मुझे कैसे और कैसे अच्छे से समझ में आएगा। शोभा जी, ठीक है। सो इट वॉज माई विनय टूवर्ड्स महावीर स्वामी भगवान ज्ञान, नॉट फॉर कंचन आंटी, बट indirectly to Kanchan aunty because she was going to decode it. Okay, शोभा जी। सो विनय किसका हो रहा था? महावीर स्वामी भगवान का ही हो रहा था ना, यहाँ सुधर्म का हो रहा था, बिकॉज क्या बोलना चाहते हैं भगवान हो रहा था। सो वो विनय में जाता है, वीतराग में नहीं जाता। वीतराग इज द रिजल्टेंट, विनय से रिजल्ट, विनय इज द बिगिनिंग पॉइंट एंड द एंड ऑल्सो, बट रिजल्टेंट, वीतराग इज द रिजल्टेंट। ठीक है शोभा जी। ओके। जितेंद्रिय, परिणामों से युक्त मनुष्य कृष्ण लेशा के परिणाम वाला होता है। ठीक है, मैं ना 3-4 लेशा फास्ट फास्ट करना चाहती, एक और लेशा गंदीरी करना चाहती हूँ। नेक्स्ट ये जो सेकेंड, इस कृष्ण लेशा में मैं 3-4 लेशा करके फिर मैं इसका जंपिंग प्रोसीजर आपको बताती हूँ। नेक्स्ट लेशा है नील लेशा, के बारे में पढ़ रही हूँ, ईर्षालु। आपको किस किस चीज से ईर्षा होती है ना, एक लिस्ट बनाना। ठीक है, तो आप यदि लिस्ट बनाते हो और बोलते हो कि यार उस आदमी के इस चीज से मुझे ईर्षा है और उस आदमी के इस चीज से ईर्षा है, तो याद रखना आपको वो चीज बहुत डेस्परेटली चाहिए। ओके, आप गंदे इंसान नहीं हो। जो भी आपका क्रोध है, आपकी ईर्षा है, आपको आपका मान है, आपका लोभ है ना, वो बहुत कुछ इंफॉर्मेशन भी देना चाहता है। ठीक है, वो इंफॉर्मेशन को यूज करो, बट डज नॉट मीन यू आर अ बैड पर्सन। तो ईर्षा, ईर्षा जब आती है, जेलसी जब आती है ना, तो उसको लिखो, राइट इट डाउन। हाँ, पर वो नील लेशिया वाली होती है। फिर कदाग्र मतलब दादागिरी होता है ना, दादागिरी नहीं, जैन धर्म ऐसा ही है और ऐसा नहीं है। यार हम क्या जाने भाई, पता नहीं, आगम ऐसा बोल रहा है और हम इस हिसाब से पालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उसको कदाग्र मतलब दादागिरी नहीं है। कई लोग बहुत दादागिरी मारते हैं। जैन धर्म में किसी को दादागिरी मारते हुए देखा है आपने? हाँ, देखा है? इट इज दिस वे और द और एनी दिस थिंग, वो सब भी कदाग्र ही है। सोचो, वो धर्म करने वाले हैं फिर भी कदाग्र है। तपस्या न करने वाले, देखो मेरे मन में है कि तपस्या करूं, पर मैं बॉडी से नहीं कर सकती हूँ, तो मैं इस कैटेगरी में नहीं हूँ, क्योंकि माइंड से, लेशा इज माइंड रिलेटेड, राइट? माइंड से तो मैं अनुमोदना कर रही हूँ ना, सो मैं इस लेशा में नहीं हूँ। इसलिए माइंड से अनुमोदना करनी है हमको। तपस्या, वेरी गुड। अविद्या वाली, अज्ञानी। व्हाट इज अविद्या या अज्ञानी का मतलब क्या होता है? नो इंटरेस्ट इन फाइंडिंग द ट्रुथ। What is Jainism exploring at? All the philosophies, all the sciences are working at finding the truth. जैन धर्म भी तो सत्य धर्म क्या है? जैन धर्म क्या है? सत्य की खोज है। सत्य की खोज कौन कर सकता है? 2 तरीके के लोग सत्य की खोज कर सकते हैं। एक तो केवली भगवंत, क्योंकि केवल ज्ञान से डायरेक्टली सत्य मिल जाता है, एक्सेस हो जाता है। बट यदि मेरे पास सत्य केवल ज्ञान नहीं है, तो मैं सत्य की खोज कैसे करूंगी?
तो महावीर स्वामी भगवान ने बताया है कि तुम्हारे पास केवल ज्ञान नहीं है और तुम वैसे सत्य की खोज नहीं कर सकते, तो एक और तरीका है, वो है अनेकांतवाद से आप सत्य की खोज कर सकते हो। ठीक है, कैसे एक सत्य की खोज कर सकते हो अनेकांतवाद से? एक नए से जानो, दूसरे नए से जानो, कितने नयों से जानोगे ना, जितने नयों से जानोगे उतना सत्य तो जान पा रहे हो ना, उतना ही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे अंशों में हम सत्य की खोज आराम से कर पाएंगे। आर वी क्लियर? आप में से कितने लोगों को ये ऐसे सेंटेंस वो बार बार बोलता है कि यार मुझे तो ज्ञान होता ही नहीं है? ऐसे सेंटेंस कौन कौन बोलता है कोई? यार मुझे तो ज्ञान होता ही नहीं है, ऐसी शक्ल बना के। या समटाइम्स आई से कि व्हाई आई डोंट अंडरस्टैंड, जल्दी मुझे जब मैं कुछ पढ़ती हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता है, तो आई टेल माई सेल्फ कि नहीं समझ में आता है जल्दी। ठीक है, बट देन नहीं समझ में आता है तो आर यू सैड अबाउट इट? नहीं, आई जस्ट सैड, मतलब ऐसे सैड इतनी भी नहीं, बट आई सोचती हूँ ऐसे कि भाई अंतराय है, या ठीक है, तो भगवान अंतराय आपने भी मुझे हो सकता है, जल्दी। बहुत होता है कभी कभी, एक एक साल, दो दो साल, क्या छह छह साल भी। मेरे को तो, मैंने बताया ना, कहीं कहीं टॉपिक्स, मेरे को दोनों टॉपिक्स अनेकांतवाद और सम्यक दृष्टि का टॉपिक 6 साल लगे थे पढ़ने में। तो आई यू डोंट हैव टू गेट थिंग, बट कोई सैड रहता है, अरे हमको तो ज्ञान ही नहीं होता है, ज्ञान ही नहीं होता है। अबे नहीं होता है तो नहीं होता है, बिग डील, आगे जो होता है वो करो ना, तपस्या होती है वो कर लो, जो होता है आगे बढ़ो। राइट। हाँ, तो स्थानक में अभी एकाशने करा रहे थे, तो सबने बोला एकाशने कर रही है। तो जब कोई somebody told me कि अरे अच्छा है you're joining us, I said नहीं नहीं, you all are तो very high level, आप लोगों को दूसरी सब चीज आती है, मुझे खाली ये छोटी सी चीज आती है, इसलिए एटलीस्ट आई डू दिस मच। ये चीज, एक चीज ही आती है तो इतना तो करूँ, तो आई ऑल्सो फील कि जो ये मुझे आता है तो एटलीस्ट आई एम हैप्पी कि मैं ये तो कर रही हूँ। हाँ, पर ये जो हम लोग इतने अज्ञानी नहीं रहे, राइट, मतलब वी आर इन अ बेटर ऑफ प्लेस। सो मायावी, निर्लज, निर्लज मतलब पता है ये सब कुछ गलत है, फिर भी शेमलेसली प्राउड ऑफ इट। होते हैं कई लोग शेमलेसली प्राउड होते हैं, हम लोग ने तो उल्लू बनाया उसको, बड़े प्राउडली आके बताते हैं हमने तो उसको उल्लू बनाया। कई लोग आके बोलते हैं ये सब चीजें, भाई शर्म करके तूने उसको उल्लू बनाया, कितने कर्म चिपकाए अपने ऊपर भी, भुगतना पड़ेगा कभी ना कभी। तो ये लोग भी जो होते हैं ना, पहले आई यूज्ड टू बी प्राउड कि अरे मैं सब्जी वब्जी भी नहीं काटती, मेरा तो आई टेल माय सर्वेंट टू टू कट एवरीथिंग एंड ऑल, तो आई यूज्ड टू फील प्राउड एंड आई यूज्ड टू से। बट अभी मुझे समझ में आ रहा है कि वो कितनी गंदी चीज थी। अ, या कितने तो जीव सर्वेंट ने काट के मारे होंगे, अपन होते तो वी सी चेक प्रॉपर्ली। तो अभी मुझे लगता है कि मैंने वो गलती की थी, प्राउड। प्राउड, ओके, या, सो सो ट्रू। नेक्स्ट है विषय कषाय में घृत। विषय और कषाय, विषय का क्या होता है, 5 इंद्रियों के टॉपिक्स को विषय बोलते हैं, और कषाय तो 4 है ही। इफ वी आर कॉन्स्टेंटली इन engrossed in that, it is विषय कषाय। ठीक है, में ग्रद भाव रखने वाले। बॉडी से करना, प्लीज माइंड से मत करना, विषय कषाय में नहीं रहना है। ठीक है, इसलिए माइंड से हमेशा मोक्ष मार्ग चलना चाहिए। कंचन आंटी की क्लासेस में ना, आंटी जब पढ़ा रही होती थी ना, तो मैं हर चीज में ना, जो भी वो टॉपिक पढ़ा रही होती ना, मैं उसी टॉपिक को पहले अनेकांतवाद में डालती थी, फिर कभी साधु पन्ने में डाल के देखूंगी, कभी श्रावक पन्ने में उसी टॉपिक को डाल के देखूंगी, कभी वही टॉपिक को मोक्ष मार्ग के एंगल में डाल के देखूंगी। एक ही वस्तु को अलग अलग एंगल से जब आप तुम एनालिसिस करते हो ना, तो अच्छा रिजल्ट्स मिलता है। तो कोई मुझसे पूछ रहा था कि दुनिया में सबसे घटिया आदमी, घटिया जीव कौन, मतलब एनिमल्स होते हैं ना, एनिमल्स में सबसे घटिया जीव कौन? मैंने कहा मुझे एनिमल्स का तो नहीं पता, पर मुझे ह्यूमंस बहुत ही घटिया लगते हैं। राइट, मैंने कहा इन पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, वो लोग अपने फायदे के लिए जो दूसरों का नुकसान करते हैं ना, इज मैसिव। राइट, और मैंने कहा ये लोग स्टैब भी करते हैं, बेशरम भी होते हैं, एंड दे आर वेरी प्राउड ऑल्सो ऑफ इट। तो मैंने कहा आई डोंट हैव मच रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमंस एज अ स्पीसीज। राइट, आई डोंट हैव। हाँ, इसमें
गलत काम करने वाले ज्यादा और सही, दुनिया में सही करने वाले कम मिलते हैं। बट अगेन आई कैन नॉट बी यूनिवर्सल अबाउट इट। वाई? महावीर स्वामी भगवान भी तो मनुष्य ही थे ना, राइट? राइट, उनका तो कितना उपकार है ना हम जैसे लोगों पे, राइट? सो मनुष्य में ज्यादातर खराब है, पर वो कुछ अच्छे भी हैं। अभी उसी चीज का मोक्ष मार्ग का पॉइंट ऑफ व्यू भी देखो। किसी ने मुझे बोला कि हमारे ना कुछ पैसे किसी ने हड़प लिए, या होता है ना कई बार किसी को दिए वापस नहीं दिए, तो मैंने उसको समझाया कि ऐसे ऐसे बातें कर सकते हो, ऐसे ऐसे कर सकते हो, वी डिस्कस दैट। एंड में पता है मैंने क्या बोला? एंड में मैंने बोला चलो इसी बात को ना मोक्ष मार्ग के एंगल से सोच के देखते हैं। मोक्ष मार्ग क्या बोलता है? किसी के कर्म, पैसे चुराए थे, चोरी हो गए, मिल गए तो ठीक, तो निषेध रचना खत्म हो गई तो मिल जाएंगे, और नहीं मिले तो याद रखना निषेध रचना अभी भी ऑन है, पर निर्जरा तो पक्का गारंटीड है, उतना तो फायदा हो ही रहा है। तो मान लो पैसे गए, वो वैसे भी वापस नहीं मिलने वाले, निर्जरा तो गारंटीड ना, रख, वो निर्जरा ही उठा ली। एक आई न्यू समबडी, उसके घर में ना उसके सास ससुर और पति बहुत खर्चा करते थे, नॉर्मल से ना बहुत ज्यादा खर्चा करते थे। होता है ना कई लोग लोन्स ले लेके खर्चा करते हैं, है ना, दे आर यूज्ड टू अ वेरी हाई लाइफस्टाइल। उसमें क्या होता है, व्हेन पीपल आर यूज्ड टू लिविंग ऑन अ वेरी हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ना, तो जब पैसे की कमी होने लगती है ना, तो दे कैन नॉट रिड्यूस देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो उसको बहुत टेंशन थी, लेडी ऑफ द हाउस कहती है मैं कैसे मैनेज करूंगी अपना घर, मैं कैसे मैनेज करूंगी, वो लोग तो इतना खर्चा करते हैं। तो मैंने कहा तू अपने इंटरेस्ट पहले तो फिक्स कर ले, अपने इंटरेस्ट फिक्स कर ले, मतलब प्लीज इंश्योर कि इससे ज्यादा खर्चा घर का नहीं होना चाहिए, और इससे ज्यादा मैं निकालूंगी भी नहीं अब मतलब खर्चे के लिए। उसके ज्यादा ये लिए वो लोग अपने तरीके से कर रहे हैं, लेट देम डू, इट इज देयर कर्म, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। इज इट पॉसिबल टू थिंक लाइक दैट? क्या कोई सोच सकता है? चंचल जी, सोनल, कैन यू थिंक? शोभा जी, क्या आप सोच सकते हो ये सब इस लेवल पे कि किसी ने पैसे मैंने चुराए थे इसलिए वो आदमी मेरे पैसे हड़प रहा है और कर रहा है? क्योंकि एंड में आपको मोक्ष मार्ग से ही शांति मिलने वाली है, मोक्ष मार्ग से ही माइंड में शांति मिलेगी। नहीं करोगे तो आपकी तबीयत ही खराब होगी, है ना? ये सब एग्जाम्पल्स भी आते हैं। नेक्स्ट टाइम, प्राद्वेष करने वाला मतलब अगेन जेलसी, हेट करने वाला। हेट भी कम हो जाती है, सम्यक दर्शन आता है ना तो हेट रेट कम हो जाती है, देखने का नजरिया चेंज हो जाता है। शट ध्रुव ठग मतलब उल्लू बनाने वाला। मैंने बताया ना, उल्लू और माया करने वालों को लोग बड़े स्मार्ट समझते हैं। पीपल थिंक ओ दे आर वेरी स्मार्ट, पर ये तो गांव का भोला आदमी, सीधा आदमी, ऐसे लोग बोलते हैं। नेक्स्ट है प्रमादी, लेजी। हम कितने लेजी हैं? हम इतने लेजी भी नहीं है ना, हम मोक्ष मार्ग में माइंड से तो सोच ही रहे हैं ना, हाथ पैर मार ही रहे हैं ना। सो वी आर बेटर ऑफ। रस लोलू, पूरा टाइम अबाउट रसेंद्रिय, खाना 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 खाना। There are people like that also I've seen. They are obsessed with food. सात गवेशक मतलब सुख की गवेषणा करने वाला। चल ये तो हम भी करते हैं, सुख चाहिए होता है हमको भी, बट वी कैन रिड्यूस द सुख ऑल्सो। कभी कभी हम सुख बंद करके समायिक भी करते हैं ना, कभी कभी सुख बंद करके हम संवर भी करते हैं ना। सो दोज आर दोज गुड टाइम्स। आरंभ से निवृत्त न होने वाला। Some people are constantly planning हिंसा की एक्टिविटी, there is no desire for समाई कई लोगों में। सो ऐसे लोग इस लेशा वाले होते हैं। आपके तो मन में होता है ना, टेंशन होती है ना यार समाई की न्यू ईयर कब करे समाई, तो आप इस लेशा वाले नहीं हो, टेंशन मत करो, ठीक है? और शुद्र, तुच्छ और साहसिक, बिना विचारे काम करने वाला। इस उपरोक्त परिणामों से युक्त मनुष्य नील निष्ठा के परिणाम वाला होता है, ठीक है? मैं एक थर्ड वाला भी ले रही हूँ, कापोतलेश्या वाला। वक्र कुटिल वचन बोलने वाला, हमेशा टेढ़े और उल्टे सीधे वचन बोलने वाला, उल्लू बनाने वाला। हैव यू नोन द कॉन्सेप्ट ऑफ गैस लाइटिंग? यू नो व्हाट इज गैस लाइटिंग? नहीं आता है ना तो एक गूगल करना,
I've seen so many people gaslighting unnecessary. मुझे पहले पता नहीं था, जब मुझे पता लगा, मैंने तब किसी ने मुझे बताया, this is the meaning of gaslighting. I said, yeah, this is exactly what people do. तो जब तुमको कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं ना, तब तुम खराब से मुंह पे बोल देते हो, यू आर गैसलाइटिंग. तो ये सब बहुत करते हैं लोग. वक्र आचरण करने वाला मायावी, मन की अपेक्षा वक्र. यहाँ से मन से ज्यादा वक्र है, टेढ़ा है, सरलता से रहित. सी यहाँ पे माया, पूरा ये जो कापोतलेशा इज ऑल अबाउट माया. ठीक है. अपने दोषों को छिपाने वाला, अगेन माया. छल पूर्वक बर्ताव करने वाला, अगेन माया. मिथ्या दृष्टि. अनार्य. अनार्य मतलब अनसिविलाइज, टोटली देयर इज नो रूल्स, ऑलवेज ब्रेकिंग रूल्स. अनार्य का मतलब होता है अनसिविलाइज्ड. आर्य देश का मतलब क्या होता है? सिविलाइज्ड कंट्री. सिविलाइज मतलब जहां पे रूल्स एंड रेगुलेशन से सिस्टम चलता है, राइट. सो इंडिया में अनादिकाल से ये आर्य क्षेत्र रहा हुआ है. यहाँ पे हमेशा रूल्स एंड रेगुलेशन से ही सिस्टम चलता आया है. ये कभी भी जंगल रूल नहीं था इंडिया के अंदर. ठीक है. लोग बोलते थे ना, अरे इंडिया तो बहुत गरीब था. कोई गरीब नहीं था. इंडिया के अंदर इतनी जबरदस्त साइंसेस पहले जमाने में भी थी. इट वॉज ऑलवेज एन आर्य क्षेत्र. देयर वाज ऑलवेज रूल्स एंड रेगुलेशन से यहाँ पे निर्वाह होता था, गवर्नमेंट चलती थी. दुष्टवादी मतलब मर्म भेद वचन बोलने वाला. मतलब यदि मुझे आपकी बात कोई सीक्रेट पता है तो मैं उसको बता दूं, उसको बोलते हैं मर्म भेदी वचन बोलने वाला. चोर और मत्सरी मतलब दूसरों की उन्नति को सहन नहीं करने वाला. ये कापुतलेशा वाला है. आप ध्यान से देखना, इसमें सब कुछ माया. इट इज ऑल बॉइलिंग डाउन टू माया. ठीक है. सो इसके आगे लिख लो तुम लोग, ये सब माया है, लिख लो. माया. पहला माया. मैं फोर्थ भी कर लूं? आज सारे कर लेते हैं. आज थियोरी कर लेंगे ना तो अगली क्लास में मजा आएगा, when you can show how the jumping happens. आज मैं अभी मैं शुभ लेशा में जा रही हूँ, तेजो लेशा को ले रही हूँ. नम्र वृत्ति वाला. तो सारे नम्र वृत्ति वाले अच्छे होते हैं क्या? स्कूल की टीचर को भी नम्र दिखाते हैं, नम्रता दिखाते हैं, वो सब होते हैं ना. गुड मॉर्निंग टीचर्स, एवरीथिंग, ये सब बोलने वाले नम्र वृत्ति वाले होते हैं. दे आर तेजो लेशा, दे आर नॉट शुक्ल लेशा. चपलता रहित. चंचलता नहीं है इसमें. माया रहित. कौतूहल आदि नहीं करने वाला, मतलब किसी को माया और उल्लू नहीं बना रहा है. विनीत परम विनय भक्ति करने वाला. बेसिकली यहाँ पे विनय इज वेरी इंपॉर्टेंट. नम्र वृत्ति वाला. इंद्रियों को दमन करने वाला, मतलब इंद्रियां आर इन योर कंट्रोल. अगेन डिसिप्लिन लाइफ जी रहा है. देखो, आपको सक्सेसफुल बनना है तो यू हैव टू लिव अ डिसिप्लिन्ड लाइफ. स्वाध्याय आदि में रत रहने वाला. दे आर इनटू बुक्स. उपधान आदि तप करने वाला, तपस्याएं करने वाला. धर्म में प्रेम रखने वाला. धर्म में दृढ़ रहने वाला. पाप से डरने वाला. ये सब धर्म के कंपोनेंट्स हैं. सभी प्राणियों का हित चाहने वाला. इन उपरोक्त परिणामों से युक्त प्राणी तेजोलेशा के परिणाम वाला होता है. जितने भी दुनिया में लोग हैं जो दूसरों की हेल्प करते हैं, हमको लगता है यार दीज आर द बेस्ट ह्यूमन बीइंग्स ऑन प्लैनेट अर्थ, राइट? व्हाई? ओ माय गॉड, दिस पर्सन डज सो मच फॉर द वर्ल्ड. बट जैन धर्म में उसको तेजोलेशा वाला आदमी बोला गया है. सो आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू पीपल इन जैनिज्म. Am I in Tejolesha or am I in Shuklalesha? वो धर्म में हेल्प कर रहे हो तो तेजोलेशा नहीं होगी. इफ यू डूइंग अदर हेल्प देन इट इज तेजोलेशा. या बट आप ध्यान से देखोगे ना, हेल्प यदि होती है ना इन्वॉल्व, दूसरों के हित चाहने वाला, मैं चाहती हूँ कि आप लोग सम्यक दृष्टि बनो, आप मोक्ष जाओ, तो ये तेजोलेशा के सिम्टम आ जाते हैं. आप बोलोगे व्हाई नॉट शुक्ललेशा के सिम्टम? क्योंकि शुक्ललेशा में वीतराग दशा है.
I am not in a Vitrag Dasha. I love you guys. I love you and I hate you also, right? हाँ? So मेरा सवाल ये है कि in that case मुझे जब आपको पढ़ाना चाहिए तो वीतराग दशा में पढ़ाना चाहिए, right? I should not do राग एंड द्वेष with you and teach. ये लक्ष्य होता है पर ऐसा होता नहीं है. राग और द्वेष आता ही है. You know, you start liking your children. You know, जैसे अपने बच्चे प्यारे होते हैं, घर वाले मेंबर्स प्यारे होते हैं, रिश्तेदार प्यारे होते हैं, तो you start having a good relationship with your students also, right? And your teachers also. हाँ? And because of that, राग और द्वेष के एग्जिस्टेंस की वजह से तेजोल एशिया को क्वालिफाई करता है और शुक्ल एशिया को क्वालिफाई नहीं करता. देयर इज अ डिफरेंस. देखो शुक्ल एशिया में वीतराग दशा है, देखना. ओके, तो तेजोल एशिया समझ में आ गई. पद्मलेशिया और कपोल, व्हाई नॉट? नहीं, पद्म भी हो सकता है. मैं ना एक्सट्रीम बता रही थी, ठीक है, कि तेजोल एशिया का मेन सिम्टम है कि आदमी सॉफ्ट है, हम्बल है. हम्बल है मतलब एकड़ी नहीं दिखा रहा है. एक तो हम्बल है, मतलब हम्बल होने के साथ साथ सामने वाले का हित चाहने वाला है, मतलब सबका भला हो चाहने वाला है. ये तेजोल एशिया वाला है, ठीक है. ये अच्छा है. ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं, मेरा भला हो, तेरा जाए, तेरा तू जाने. देन यू आर नॉट इन तेजोल एशिया, देन यू आर इवन पैथेटिक एशिया. पर ज्यादातर हमारे जैसे लोग क्या सोचते हैं, नहीं मेरा भला हो पर मेरा साथ सामने वाले का भी भला हो, तो भी हम तेजोल एशिया में है, क्योंकि राग और द्वेष एग्जिस्टेंट है. समझ गए? आप बोलोगे नहीं आप तो हम्बल हो. हम्बल है तो क्या है, राग और द्वेष तो है ना. दिख रहा है आपको ये तीन चीजें. तो तेजोल एशिया के सामने मैंने तो अंडरलाइन किया है, नम्र वृत्ति वाला एंड हेल्पफुल, सभी प्राणियों का हित करने वाला. ये दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है. आप अंडरलाइन कर रहे हो आई होप. तापोत में क्या था, माया की प्रभुलता थी. इसके अंदर क्या है, तेजो के अंदर विनम्र मतलब हम्बल आदमी है लेकिन सबका हित चाहने वाला है. अभी पद्म इससे भी ज्यादा बेटर है. पद्म में क्या है देखते हैं. Aunty, I want to add one thing. I think I was like that, सबका हित चाहने वाला. पर अब कुछ कुछ केसेस में लगता है कि मैं बेवकूफ भी कर रही हूँ अगर मैं वैसा कर रही हूँ. वेरी गुड, वेरी गुड. जैन धर्म में मोक्ष मार्ग इज नेवर टॉकिंग अबाउट सोशल वर्क. व्हाट इज इट टॉकिंग अबाउट? कर्म निर्जरा. निर्जरा is more important than Yeah. those things. Yeah. निर्जरा in वीतराग दशा, in वीतराग दशा. That is why we want शुक्ल ध्यान. We are not even very happy with तेजोल एशिया. इसलिए तो मैं एडमिट कर रही हूँ ना कि हमारी कैपेसिटी नहीं होती. जब हम पढ़ाते हैं ना तो राग द्वेष एक्टिवेटेड रहता है. तो जब मैं मेरी समायक करती हूँ ना, उसमें वीतराग दशा में हम पहुंचते हैं. That's why. जैसे एक एग्जांपल देना चाहती हूँ आंटी मैं. सो अभी बिकॉज ऑफ दिवाली ओनली आई मेड लॉट्स ऑफ वो पानी पूरीज. आलू गया एंड मैंने बहुत जन को बांटा भी. मुझे पता था मैं गलत कर रही हूँ. मैं एक एक आलू भी बॉईल कर रही थी ना. आई वाज लाइक व्हाई आई एम डूइंग दिस, आई शुड नॉट बी डूइंग दिस. बट 2-3 फ्रेंड्स वर एक्सपेक्टिंग, दे वर प्रेग्नेंट. तो वो ज्यादा ऊंचा चढ़ गया था कि दे आर प्रेग्नेंट, उनको पसंद आएगा. एंड आई, और घर में भी गेस्ट आने वाले थे, गेस्ट आने वाले उनको दिया, दैट इज ओके. बट मेरे को फालतू में अनुमोदना बाहर नहीं देनी चाहिए थी. Why not? खाना देने में कभी भी नेगेटिव मत आंटी सोचो. आलू फिर वो इस श्रावक के मर्यादाओं के अंतर्गत है. वही तो कभी मैं बता रही हूँ तुम लोग पहले ये जो अहिंसा सीख के पहले आते हो ना, मैं कब निकालू, कैसे निकालू तुम्हारी ये अहिंसा का भूत यार. जैन धर्म अहिंसा प्रधान धर्म है, पर तुम श्रावक हो, तुम खुद भी तो खा रहे हो ना. और तुम्हारे पचकान थोड़ी ना कि मैं किसी आलू को खाना के सामने वाले को नहीं दूंगा. ऐसे क्या क्या पचकान तो नहीं है ना, राइट? नहीं नहीं तुमको नहीं आंटी. पानी पूरी नहीं दोगे तो कुछ और तो दोगे ना, क्योंकि दिवाली पे कुछ ना कुछ तो गिफ्ट्स देते ही है ना. तो यदि कोई दिवाली के दिया था. इट वाज जस्ट लाइक दैट. समवन वाज कमिंग, मैं बोली बना ही रही हूँ तो और बना लेती हूँ. और जो प्रेग्नेंट थे उनके अब्रॉड में सब लोग ऐसे ही करते हैं. दे मेक डबल सबको बांट देते हैं. दिस इज अ नॉर्मल सोनल, दिस इज व्हाट वी ऑल डू. ओके, बिकॉज यू लिव अब्रॉड ना, दैट्स व्हाई यू आर सेइंग. बट एवरीबॉडी हु लिव्स अब्रॉड ना डू मैक्सिमम कुकिंग, सबको बांट देता है. फिर सामने वाला दूसरा भी मैक्सिमम कुकिंग करता है तो वो भी तो बांटता है ना सोनल. सो देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट. प्लीज डोंट फील गिल्टी अबाउट दैट आलू मैंने दे दिया. कम ऑन यार, आई मीन कम आउट ऑफ दैट यार. Even I felt bad this time. मैंने आलू प्याज का बिरयानी बनाई थी, and it was like 3 kilos of aloo and 3 kilos of onions and 5 kilos लहसुन, like lots of आलू प्याज लहसुन. So I also felt कि घर के लिए बनाऊं अलग है, but I'm making
फादर्स, तो मुझे ऐसा लगा कि उनके लिए भी मैं पाप कर रही हूँ। ठीक है, पर करना पड़ता है ना, बिकॉज यू हैव टू गिव एज अ सोशल एनिमल, यू नो, यू हैव टू Then सर्वाइव। वही है जो आपने बताया ना कि करना पड़ता है इसलिए कर रही हूँ, बट मन से नहीं कर रही हूँ, बट व्यवहार से कर रही हूँ ऐसे। एंड डोंट फील सो मच गिल्टी, एंड प्लीज सोनल कम आउट ऑफ इट, राइट? पानी पूरी करके तुमने कितनों को खुशी दी, पंचेंद्रिय भी तो खुश होता है ना। सो थिंक ऑफ दैट वे, राइट? एंड सोसाइटी में रह के ना सोसाइटल नॉर्म्स पालने पड़ते हैं, यू हैव टू सर्वाइव, राइट? तुमने जिसको भी दिए होंगे ना, दे विल बी योर बेस्ट फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी, राइट? अब वो तुमको अपने, दे विल Yes, आल्सो, Okay, yes. डोंट फील बैड एट ऑल। And one more example. आपने वो जो बोला था ना कि हमारे कर्म है इसीलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है। अभी आपने जो पैसे वाला एग्जांपल दिया था, अभी जस्ट नाउ जैसे आपकी क्लास स्टार्ट हुई, आई हैड अनएक्सपेक्टेड गेट। अभी दिवाली में कोई भी आ जाता है, एंड मैंने बस डिनर फिनिश करके, मेरा किचन वाज ऑल अनटाइडी, बच्चे बस नहा के निकले थे, वो होता है ना, माय हाउस वाज नॉट एट ऑल रेडी फॉर हैविंग गेस्ट एट होम। मुझे हम निकले ना, मैंने ये बोला कि मेरे इंसल्ट मेरे लिखी, मतलब ऑल तो वैसे नहीं, बट वो होता है ना, गेस्ट विल फील, बोले अब लिखे थे कर्म थे, इंसल्ट खानी दिखा ली मैंने अपने आप को वैसे ही somehow किया हाँ, मैंने। एंड आई वाज एक्चुअली शांत आफ्टर दैट कि अब क्या कर सकते हैं, समथिंग थिंग्स आर नॉट इन आवर हैंड समटाइम्स। so some houses are made to live and some people are made spick and span to show. तो ये सोच सोनल कि that my house is made to live and your house is made to show other people. So ठीक है, मैं तुम्हारे घर आऊंगी तो शो ऑफ करना, मेरा तो लिव रहने के लिए घर है, तो हम लोग ऐसे ही रहते हैं, right? So it's okay, do not feel low about it. It's not an insult at all. It's, I think you're Yes, overthinking about what other people think. अरे हाउ डू आई से, बच्चों ने गैरेज का गेट भी खोल दिया, गैरेज वाज आल्सो अ मेस। से मैंने बोला इंसल्ट लिखी है तो बस तुम अब करते जाओ, यू विल सी दो चार इंसिडेंसेस ऐसे। आई डिड नॉट फील लो, मैं यही बोल रही हूँ कि मैंने धर्म को ही डाला सर पे कि अब ठीक है, ये होना था हो गया। फिजिकली कितना कर सकते हो यार, यू पीपल अब्रॉड में ना लोगों के पास सर्वेंट्स नहीं होते हैं, खुद ही सब कुछ करना पड़ता है। गैराज भी तुम ही क्लीन करोगे, राइट? पूरा किचन भी तुम वाइंड ऑफ करोगे, बर्तन भी खुद धोगे यार, बस हो जाती है। आई हैव स्टेड अब्रॉड सो आई नो यार, मतलब इतनी बस होती है ना, इतनी बस होती है कि साला भी बर्तन ही नहीं खत्म होते। सो आई नो हाउ मच स्पेसिफिकली Yes. यू। वही तो, सिंक वाज फुल ऑफ डिशेस। होता है ना, व्हेन यू हैव गेस्ट यू डोंट, और यहाँ पे ओपन किचन और है, एक और मुसीबत। So open kitchen is for anybody guest who's not liking the thing, na, please come and wash my dishes also. Tell them that. नहीं सीरियसली, हम लोग बाहर में तो सब लोगों की ड्यूटीज लगती थी, आज ये दोनों बर्तन धो रहे हैं, यू नो, इन्होंने खाना बनाया तो ये दोनों बर्तन धोएंगे, so put them into duties also. Anyway, let's do Padma Lesha right now, ठीक है? We have time. पद्म इज सेकेंड लास्ट लेशा में ना, शुक्ल लेशा के नीचे वाला पद्म लेशा है, उसमें प्रतनु क्रोध करने वाला, यानी अल्प अल्प क्रोध, अल्प माया, अल्प लोभ और गुस्सा भी, मतलब अपनी आत्मा का दमन करने वाला, मतलब क्रोध मान कषाय भी कंट्रोल में है और आत्मा को भी दबा के रखता है। स्वाध्याय आदि करने वाला, उपधान आदि तप करने वाला, परिमित बोलने वाला, उपशांत और जितेंद्रिय। इसका मतलब एक एटीट्यूड आ जाता है उसमें, इट्स लाइक चल छोड़ एटीट्यूड, चल छोड़, क्या करना है, चल छोड़ ना यार, इतना मत झमेला पालो, राइट? सो ये ना, दिस इज आई थिंक, ये मेरा स्टेज नहीं आया है और आएगा भी तो मे बी जब मैं 70-80 ईयर्स की होंगी ना, जब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी ना, तब शायद ये आएगा। अभी जब तक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी का, अभी लगता है ये भी करो वो भी करो, तो अभी बहुत टेंशन रहती है, पर आगे चल के वो छोड़ एटीट्यूड आता है, चल छोड़, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो पद्म लेशिया इज अ बेटर लेशिया। इसमें आदमी में कषाय भी कंट्रोल में है, स्वाध्याय आदि भी कर रहा है, लेकिन वो जितेंद्रिय भी है, उपशांत भी है, उसको वो छोड़ने, मतलब उस चीज को वो देखता है और फिर बोलता है चल छोड़, मुझे इस पे ज्यादा एक्शन नहीं लेना है, मतलब आई विल ओवरसी द प्रॉब्लम, मतलब मैं देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, बट मैं आंखें बंद करके आई विल लुक द अदर वे, ठीक है? पद्मलेशिया वाला इतना कंट्रोल्ड होता है, और ये पद्मलेशिया के गुण हैं। ये समझ में आ गया? पद्मलेशिया दिख रहा है, सब लेशियाएं दिखनी चाहिए। मैं आगे जाके तुमको 3 लेशिया, पॉजिटिव लेशिया पे ही जंपिंग कराऊंगी। लास्ट है शुक्ल लेशा के बारे में बोल रही हूँ, जो पुरुष आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान छोड़कर धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ध्याता है,
धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में आगम की नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो याद रखना, आपको यदि शुक्ल लेशा ध्यानी है ना, तो आपको आगम का बेस रखना पड़ेगा। देखो इस सेंटेंस से निकल रहा है, क्या निकल रहा है? आर्त ध्यान रौद्र ध्यान छोड़ने वाला और धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान ध्याता है। धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान तो हो नहीं सकता, बचा धर्म ध्यान। धर्म ध्यान में आगम की नॉलेज इज पैरामाउंट, राइट? सो जब भी आप आगम की नॉलेज यूज करके कुछ करते हो ना, आप शुक्ल ध्यान में चले जाते हो। सो मान लो मुझे गुस्सा आ रहा है तुम पे और मन करता है दो गाली दूं, और तभी मैं सोचती हूँ यार मैं कौन सी लेशा में हूँ, कौन सी लेशा में हूँ महावीर स्वामी भगवान। मैंने आगम से महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान एक्सेस किया। जैसे ही ज्ञान एक्सेस किया ना, और देख रही हूँ कौन सी लेशा में हूँ, कहाँ पे कन्वर्जन होना चाहिए, सही हूँ गलत हूँ, हाँ, मैं डायरेक्टली शुक्ल लेशा में जंप कर जाती हूँ। अब समझ में आया कि मैं आप लोगों को क्यों बार बार बोल रही थी, देखो तो सही कौन सी लेशा में हो, जंप करो, कम इनटू गुड लेशा। रिमेंबर आई वाज केप्ट टेलिंग यू। हाँ, जैसे ही आप भगवान के ज्ञान को स्टार्ट भी करते हो ना, धर्म ध्यान स्टार्ट्स, शुक्ल ध्यान स्टार्ट्स। गॉट इट? हाँ, दिस वाज द मेन की। प्रशांत चित्त वाला, वो खुश है, हैप्पी है। आई एम हैप्पी मतलब अपनी अपने मन मौजी है, हैप्पी इन देयर ओन वर्ल्ड। आप सुबह उठ के समायक पचक के बैठ गए, ठीक है? 6 से 8 आपने समायक करनी है 2, ठीक है? आपकी मेड आती है, सर्वेंट आती है 7 बजे, तो 7 से 8 वो 1 घंटे में काफी काम करके रखती है। आप आज 7 बज गए, 7:30 बज गए, 8 बज गए, आप उठे नहीं थे, बट आज मेड आई नहीं, तुमको तो पता नहीं था क्योंकि तुम तो समायक में थे। 1 घंटा तुम बड़े हैप्पी थे ना, राइट? मन मन में कितनी खुशी थी। क्यों? जब आप समायक में होते हो ना, आप दुनिया को छोड़ चुके होते हो, ऑलमोस्ट यू कट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड, and you are in that happy zone, happy on a different parallel galaxy. That is known as Prashant Chitwala. एकदम happy हूं मैं, ठीक है? You should be there. कुछ नहीं तो समायक में तो इस लेशा में जाना चाहिए, अपनी आत्मा का दमन करने वाला। जब आप समायक में होते हो तो भूख लगती है, गर्मी लगती है, पसीना आता है, तब तो आत्मा का दमन करते हो ना, तब तो चुप करके बैठाते हो ना, अरे ठीक है यार, इतनी क्या गर्मी लग रही है, इतनी क्या ठंडी लग रही है, खरी खोटी सुनाते हो ना अपने आप को, राइट? और शांत हो जाते हो ना जब हाय तौबा मचती है तो, ठीक है? 5 सम्मति से युक्त, 3 गुप्ती से गुप्त, मतलब साधु जैसा थिंकिंग प्रोसेस आ जाता है, यानी बॉडी से भी साधु जैसी हरकतें होने लग जाती हैं, और माइंड से तो है ही। सराग, अल्प राग वाला अथवा वीत राग, यानी थोड़ा राग करने वाला, राग द्वेष करने वाला, या वीत राग। इसलिए समायक में इट इज एक्सपेक्टेड यू टू डू वीत राग दशा समायक, राइट? Even I should do these classes in a Vitrag Dasha classes. I'm doing it. I just have rag and dvesh with you people, right? I love you people, but otherwise मैं जो पढ़ा रही हूँ ना, उसमें राग द्वेष नहीं कर रही। My main concern is आगम उठाऊं और तुमको दे दूं। I'm not going to add, subtract, not take sides of संघs. You know that very well, right? कोई भी असंग के आगम लेके आओगे, मैं उसमें से पढ़ा सकती हूँ। तो उस एंगल से वीतराग दशा भी है। उपशांत और जितेंद्रिय, इन परिणामों से युक्त जीव विशेष शुक्ल लेशा के परिणाम वाला होता है। तो लुक शुक्ल लेशा में की हाइलाइट्स में बता रही हूँ। पहले तो वीत अल्परागी, अल्प राग द्वेष वाला और वीत राग वाला, ठीक है? और दूसरा है धर्म ध्यान करने वाला, मतलब आगम से रिलेटेड सोचने वाला। तो हर चीज में आगम को टांग में डाल ही दो, मतलब उसकी टांग अड़ा दो आगम की, उससे क्या होगा? कुछ भी चीज में लेशा आपकी शुभ हो जाए, कुछ भी चीज में। किसी ने आपके पैसे चुरा के बैठ गया है, तो प्रमाण से ना, आगम प्रमाण से दिखना चालू। तो आगम क्या बोलता है इस विषय में? मैंने आपको बताया ना, मेरे आसपास है ना, कोई एक सिचुएशन आई जिसमें सुसाइड का केस आया, एंड आई वाज लाइक व्हाट इज आगम टॉकिंग अबाउट इट, व्हाट इज आगम सेइंग अबाउट इट, राइट? सो जैसे ही मैंने किया, मेरी लेशा शुभ हो गई ना। क्यों? मैं प्रमाण कहां से ढूंढ रही हूँ? मैं प्रमाण को एक्सेस कर रही हूँ, पर मैं आगम प्रमाण ढूंढ रही हूँ। आगम प्रमाण, जैन धर्म उस बारे में क्या होता है, ठीक है? हर चीज में ना आगम को स्कैन करना चालू कर दो, आगम इस विषय में क्या बोलता है। और जैसे ही तुम वो सोच रहे होते हो ना, उस वक्त तुम कौन सी लेशा में हो? शुक्ल लेशा में, ठीक है?
सो सोशल वर्क करने वाला कौन सी लेशा में है? सोशल तेजो वर्क करने वाला, तेजो हाँ? तेजो में, तेजोलेशिया। तेजो लेशा में है, जो जो काफी जिम्मेदारियों से खत्म कर चुका है, सारी जिम्मेदारियां ऑलमोस्ट खत्म कर चुका है, और अपना सिर्फ अपने आप को पाल रहा है और अपने लिए जी रहा है, दुनिया से ज्यादा कट ऑफ है, राइट? वो कौन सी लेशिया वाला है? पद्मलेशिया। पद्म लेशिया वाला। और जो टोटल वीतराग में जा चुका है और आगम को ही हर बात में सर्वोपरि, हर चीज में आगम को स्कैन करता रहता है, हर बार में आगम इस विषय में क्या बोलते हैं, महावीर स्वामी भगवान क्या बोलना चाहते हैं, वो बोलते हैं इस विषय में, हर चीज में महावीर स्वामी भगवान को बोलते हैं, भगवान इस इशू पे बताओ कि आप क्या आपके क्या विचार हैं। वो कौन सी लेशिया वाला है? हाँ, शुक्ला। शुक्ल शुक्ला में आ गया ना? अब समझ में आ रहा है? मैंने नीचे के 3 लेशा से ज्यादा गुड 3 लेशा के बारे में डिस्कशन कर रही हूँ, ठीक है? तो हेल्पफुल, बीइंग हेल्पफुल टू अदर्स इज गुड, राइट? बट यू शुड नो व्हेन टू स्टॉप। महावीर स्वामी भगवान ने कितने लोगों की हेल्प की? महावीर स्वामी भगवान के टाइम में विमेन वर इन अ वेरी बैड कंडीशन, स्लेवरी भी अलाउड थी, स्लेवरी वाज सो बैड एट दैट टाइम कि लड़के लड़के भी बिकते थे, लड़कियां भी बिकती थी, स्लेव मार्केट वाज नॉर्मल। चंदन वाला वाज अ स्लेव एट वन पॉइंट इन टाइम, राइट? तो भगवान उनको इज्जत देना चाहते थे, तो उन्होंने क्या, वो कौन सी तेजोलेशा में जाके लोगों को बोला नहीं सही करो, सोशल वर्क किया क्या? सोशल वर्क किया क्या? नहीं किया। उन्होंने जो अभिग्रह करके जो व्रत लिया ना, उसमें लिया कि मैं ऐसी औरत से लूंगा जो स्लेव है, अभी स्लेव है, पहले रानी थी पर अभी स्लेव है, यानी ट्राइंग टू गिव रिस्पेक्ट टू स्लेव, के भाई स्लेव में क्या प्रॉब्लम है, स्लेव है तो है, आदमी में तो फर्क नहीं पड़ता ना, चांडाल कुल वाला भी हमारे लिए चल जाएगा, राइट? इससे आपको क्या सीखने को मिला है कि महावीर स्वामी भगवान तेजोलेशा वाले नहीं थे, वीतराग दशा वाले थे। सो डू यू वांट टू बी हेल्पफुल सोनल? हाँ, एंड यू थॉट ओ मैं कितना अच्छा काम कर रही हूँ बिकॉज आई एम हेल्पफुल, राइट? It was out of love. Yeah, you do. No, it I was didn't want. not out of love. It was because you were taught to be good. Okay, you were taught not to say no. Okay, and then you अंदर तुमको कितना गुस्सा भी आता था because you were not able to do your own work. ठीक है? Oh, hmm. So basically तुम तो कृष्ण लेशा में जा रही थी almost, right? Yes, अब मैं yes, बोल yes. रही हूँ तेजो लेशा भी छोड़ो, अपना स्वार्थ देखो, और अपना स्वार्थ में ना अपनी आत्मा का स्वार्थ भी देखो, तब जाके तुम शुक्ल लेशा में जाओगे, ठीक है? सो लास्ट की 3 लेशा की जंपिंग अगली क्लास में हम देखेंगे। जंपिंग, हाउ डू यू जंप, हाँ, कहाँ पे कैसे करना है। तो तीनों में क्या है, तेजो लेशा, अच्छी 3 लेशा में से शुक्ल बेस्टम बेस्ट, पद्म इज सेकेंड बेस्ट, तेजो इज द लास्ट बेस्ट। सो तेजो लेशा वाला हेल्प करता है, दूसरे का भला चाहता है और हम्बल है, ठीक है? हाँ, ही विशेस गुड फॉर एवरीबडी। व्हाई इज ही नॉट पुट इन शुक्ल लेशा? क्योंकि जैन धर्म राग द्वेष को इंपॉर्टेंस देता है, ठीक है? हाँ, तेजोलेशा का आप समझ में आया सोशल वर्क की कितनी इंपॉर्टेंस है जैन धर्म में, राइट? पद्मलेशा क्या करता है, भैया मैं तो ना सब कुछ छोड़ चुका हूँ, चल छोड़ एटीट्यूड, आप एक कर दिया ना, हाँ चल हो गया, चल छोड़ना, मतलब वो विरक्त, वो वाइंडिंग अप स्टेज आ चुका है, उसमें मोक्ष मार्ग बहुत हाई लेवल का ऑपरेट हो चुका है, निवृत्ति मार्ग ऑपरेशनल है, तुम देखो निवृत्त मार्ग ऑपरेशनल हो चुकी है। हाँ, और ये कौन सा वाला, शुक्ल ध्यान में 100% निवृत्ति एक्टिवेट हो चुकी है। तो आप बोलोगे यार मैं तो 100% निवृत्त हो ही नहीं सकती, जब आप सामायिक करते हो तो 48 मिनट्स के लिए तो 100% निवृत्त हो ना, समझ गए ना, राइट? नाउ यू अंडरस्टूड कि सामायिक में बस एक्टिवेट करो ना ये वाला काम। क्या करना है सामायिक में? सामायिक के अंदर शुक्ल ध्यान लेशा में जाना है, सोचो मुझे कहाँ किस स्टेज पे रहना है, ठीक है? Think about it and we'll come back in the next class and we'll discuss and try to wind up this class. स्थान और स्थिति भी है, we'll look into this whole chapter, ठीक है? चलिए, think about कौन सी लेशा में रहना है मुझे, पद्म में, शुक्ल, पद्म, तेजो पद्म के शुक्ल में से किस में जाना है, और शुक्ल के लिए वीतराग गुण चाहिए। आई होप आप और मैं
वीतराग गुण को ज्यादा डेवलप करें, राइट? संवर करके सोएं, हाँ, सो रहे हैं संवर करके सोएं, लेशा चेंज हो जाती है आप, ठीक है? आई वॉन्ट यू टू कन्वर्ट योर लेशा, ऊपर सो रहे हो नीचे संवर करके सो, लेशा चेंज हो गई, ठीक है? खाना तो खाना है, जो मिला ना प्लेट में, किचन में जाओ, नमक टेढ़ा मेढ़ा डल गया, बिना उसको ठीक किए खा जाओ, शुक्ल लेशा ऑपरेशनल हो गई। इसीलिए पचकान में बोला जाता है ना, ऊपर से नमक नहीं डालूंगी, वाह, नमक कम डाला, भाई खा लेना यार चुप करके, राइट? शुक्ल लेशा में जाओ और खा ले, गॉट इट? सो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो डेली लाइफ में हम अपने आप को कैसे तेजो पद्म और शुक्ल में रख सकते हैं, विल बी डिस्कसिंग दैट इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है? चलिए, आई होप यू कैन ऑल स्टे इन शुक्ल लेशा। जय जिनेंद्र। Thank you.